بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں حاضر ہوں آپ کے سامنے حافظ شعیب، اور میرے ساتھ ہیں مہمان سید علمگیر اشرف اور سید راحت العاشقین حنفی. تو آج کے جو موضوع ہے، جو ڈیبیٹ ہے، وہ اس بارے میں ہے سید علمگیر اشرف، ان کی موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ ولایت اور روحانیت کی طرف سے افضل ہے، اور مطلق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے. اور ہمارے راحت العاشقین صاحب کی جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولایت اور روحانیت سب طرف سے افضل ہیں. تو اسی بارے میں یہ گفتگو چلے گی. تو پہلے گفتگو سید علمگیر اشرف صاحب شروع کریں گے. پہلے آپ کو 15 منٹ دیا جائے گا، اس کے بعد ہمارے راحت العاشقین صاحب کو 15 منٹ دیا جائے گا، اس کے بعد ہمارے سید علمگیر اشرف صاحب کو 10 منٹ، اس کے بعد راحت العاشقین کو صاحب کو 10 منٹ، اور آخر میں سید علمگیر اشرف صاحب کو 5 منٹ اور سید راحت العاشقین صاحب کو 5 منٹ. یہ پوری رہی 1 گھنٹے کی گفتگو. تو زیادہ بات نہیں بڑھاؤں گا، تو ہم لوگ مدعے میں آ جاتے ہیں. تو سید علمگیر اشرف صاحب، آپ شروع کر سکتے ہیں، ابھی آپ کی وقت شروع ہوتی ہے. دیکھ لیں. میری آواز اس سسٹم پہ آ رہی ہے؟ ہاں، ہر طرف آ رہی ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ناظرین کرام، ابھی مناظرہ 2 منٹ یا 3 منٹ یا 4 منٹ کے بعد جو طے ہوا ہے، جیسا کہ ابھی حافظ شعیب صاحب نے اعلان کیا اور موضوعات بھی انہوں نے بتایا، لیکن 2-4 منٹ کی گفتگو میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں، اور یہ آج اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پہ دنیا دیکھ رہی ہے. یہ گفتگو میں حافظ صاحب کے ساتھ آڈیو میسج بھی، ریکارڈنگ میسج بھی کر سکتا تھا، تاکہ کل مجھ پر کوئی الزام نہ لگے کہ مناظرے کا چیلنج میں نے کیا تھا. یاد رہے، مناظرے کا چیلنج مولانا سید راحت العاشقین نے کیا تھا. میں ان کو جانتا بھی نہیں، میں ان کو پہچانتا بھی نہیں کہ وہ کہاں رہتے تھے، کہاں ہیں. لیکن جب ٹیلی فون کیا تو ایک علاقے کا پتہ چلا کہ بنگلہ دیش میں، وہ سید پور میں رہتے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیا کہ یہ پری پلان مناظرہ ہے، یہ سیٹنگ مناظرہ ہے، کہ شاید ہم نے کسی ایک شخص کو پہلے سے سیٹ کر لیا ہے اور تاکہ میری شہرت حاصل ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. الحمدللہ میں نے کسی کو سیٹ نہیں کیا ہے. شاید کہ ابھی مولانا سید راحت العاشقین صاحب جب بات کریں گے تو آپ کو خود بتا دیں گے کہ یہ سیٹنگ نہیں ہے، بلکہ ان کو وہاں کے حالات کے اعتبار سے، میری بات بولیے گا، وہ بھی آپ کو مناظرے میں شامل نہیں کریں گے. یہ اتنا تو اختیار دوں گا. تو انہوں نے مجھے فون کیا، سید پور کے کچھ حالات تھے، انہوں نے میرا نمبر دیا، لیکن اس نمبر کے بعد انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. کانٹیکٹ کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ کی اس ویڈیو پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. دیکھا وہ ساری باتیں ہوئی، میں اس کو پھر سے لانے کی اسے ضرورت نہیں. پھر دعویٰ دلیل، میں نے کہا میں بزی. اس کے بعد پھر ماریشس میں ساری واٹس ایپ ریکارڈنگ کے ذریعے ٹھیک ہے ہوئی. میں 2-3 منٹ اور لوں گا، کیونکہ حافظ صاحب، میں سید صاحب کو دے رہا ہوں ٹائم، اور جتنا ٹائم میں لوں گا اتنا ہی ٹائم مولانا سید راحت العاشقین کو دوں گا، اور یہ ٹائم اس 1 گھنٹے میں نہیں ہوگا. اوکے؟ کیونکہ کچھ بنیادی ضروری باتیں کرنا میرے لیے ضروری ہے، اس کا دلائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے
کہ یہ پری پیڈ یا پری پلان مناظرہ ہے. الحمدللہ یہ پری پلان مناظرہ نہیں ہے، میں جانتا بھی نہیں، مجھے اس طرف سے ہی مناظرے کی دعوت دی گئی، میں نے اسے قبول کیا. بہت سے لوگوں کو تشویش اس بات کی ہے کہ مناظرے میں تو جیت ہوتی ہے، ہار ہوتی ہے، اور ایک طبقہ ہار پہنتا ہے، دوسرا طبقہ مایوس ہوتا ہے. بالکل بات یہ صحیح ہے. مناظروں سے ضروری نہیں ہے کہ جو فاتح ہو جائے اس کا دعویٰ صحیح ہو. مناظروں سے ضروری نہیں ہے کہ جو مفتوح ہو جائے اس کا دعویٰ غلط تھا، بلکہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے وکیل پر کہ وکیل کتنا قابل ہے. کبھی کبھی بہت سے وکیل قاتل کو بھی چھوڑا دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انداز گفتگو، ان کے پاس معاملات کو کس طریقے سے کورٹ پہ پیش کرنا اچھے سے. آخری بات مولانا سید راحت العاشقین میرے سامنے ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مناظرہ مقابل سے ہوتا ہے. میں تو الحمدللہ جس موقف اہل سنت و جماعت پر قائم ہوں، میں نے ہندوستان کے بھی ایک مولانا کو جو مسلم نے مجھے تحریری مناظرے کی دعوت دی تھی، ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ تحریری نہیں بلکہ آپ مجھ سے لائیو بات کر لیں، جو میرے خلاف آپ نے ویڈیو نکالی. تو یہاں پر جو مناظرے کی بات طے ہوئی آپ کی طرف سے ہوئی. دوسری بات، مناظرے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. کل کوئی مجھ پر یہ الزام نہیں لگائے گا کیونکہ میں الحمدللہ شیخین کی عظمت، شیخین کے مقامات، ان کے علو درجات اور ان کے تعلق سے کوئی ایسا لفظ یا مولا علی کی شان میں کہیں سے تنقیص ہو، مجھے میری زندگی سے کوئی زندگی کا مطلب نہیں دے گا کہ جو میں ان کے تعلق سے کوئی ایسا لفظ بولوں. میں اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو دنیا کے سامنے رکھوں گا. میری زندگی پہ تف ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسا لفظ بول دیا جو شیخین یا صحابہ یا حضرت مولا کائنات کی عظمتوں یا ان کے مقام کو ٹھیس پہنچائے. اس لیے تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے، یاد رکھیں یہ مناظرہ پری پلان نہیں، یہ مناظرہ پہلے سے طے نہیں. مجھے چیلنج کیا گیا ہے اور حافظ صاحب سے، مولانا صاحب سے ایک ریکویسٹ اور کروں گا. وہ ریکویسٹ ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ میرے دفاع بھی نہیں، اہل سنت و جماعت کے دفاع میں ہو. میری عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی عزت وہ اہل سنت و جماعت کی ہے. عالمگیر اشرف کو لوگ ذلیل اور رسوا کریں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اہل سنت و جماعت والی بات کہیے، یہ سب بات نہیں جو میں آپ بات کرنا چاہ رہا ابھی میں مناظرے میں نہیں آیا ہوں، میں اس لیے میں نے کہا جی ٹھیک ہے، جتنا ٹائم میں نے لیا ہے اتنا ٹائم آپ لیے. ٹائم کی بات نہیں ہے نا، آپ ٹائم مجھے دے دیں گے لیکن شارٹ کیجیے. ہاں آخری بات، اس لیے اس چیز کے جو بھی ذمہ دار ہوں گے وہ آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے مجھے مناظرے کا چیلنج کیا. گزارش یہ ہے کہ اس مناظرے کو آن لائن کے بجائے، یہ میری کمزوری مت سمجھیں گے، یہ اہل سنت و جماعت کے مفاد میں بول رہا ہوں کہ آپ آف لائن کریں. اگر وہ باتیں اہل سنت و جماعت کے مفاد میں ہوگی تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے شائع کر دیں اور جیت ہاتھ کا سہرا پہنیں. اور اگر آپ کو لگے کہ وہ باتیں اہل سنت و جماعت کے مفاد میں نہیں ہے تو آپ اسے شائع نہیں کریں گے، اسے شیئر نہیں کریں گے. اب بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 مئی کو 2024 1 مئی بنگلہ دیش کے شہر سید پور میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس پہ جناب عالمگیر اشرف صاحب 2 بندوں سے مخاطب کر کے انہوں نے فرمایا کہ آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر، اور دوسرے بندے کو کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی کا پہلا نمبر. تو یہ دونوں سنیوں کے نزدیک درست ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو افضلیت ہے وہ افضلیت مطلقہ ہے، اور حضرت علی کی جو افضلیت ہے وہ روحانیت میں افضل ہے اور ولایت میں افضل ہے.
वो रूहानियत में पहला नंबर अली का है, ये उन्होंने वो वीडियो में कहा था। तो वो वीडियो लेकर बांग्लादेश के शहर सैयदपुर में बहुत वायरल किए गए, बहुत सारे लोगों ने वायरल किया। उसके बाद जो है इनके वीडियो के रद्द में बरेली शरीफ के हिंद के बरेली शरीफ के कुछ आलिमों ने उस वीडियो का रुद्दत का वीडियो बनाया था, जो सैयदपुर के एक हाफिज साहब ने, एक दुकानदार हाफिज साहब ने पोस्ट किया था। पोस्ट जिस दिन उन्होंने सुबह को किया तो 6 मई 2024 को उसके दुकान पे कमोबेश 50-60 अफराद जाकर वहां जाकर जो है उनको समझाने के बजाय, उनसे पूछने के बजाय वहां पे जाकर उनसे तफ्तीश वगैरह करने, बदतमीजी माहौल क्रिएट किया वहां पे। उसके बाद उनको कहा कि बोला तुम्हारे कौन बाप है, कौन आलिम है, हम चैलेंज करते हैं कि ये साबित करे आलमगीर अशरफ साहब की वीडियो गलत है, सैयद साहब की वीडियो गलत है, ये साबित करो। तो वो वीडियो सीसी कैमरा फुटेज जो है उस दुकान पे जो हंगामा बरपा हुआ तो वो वायरल हुआ, और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ये दुकान पे जाकर इन लोगों ने ये चैलेंज कर रहा है। तो मैंने एक्सेप्ट किया और उन लोगों को कहा कि उनसे कहिए सैयदपुर में जो ये बात का दावा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि बुलाओ अपने आलिम को, बुलाओ अपने बाप को, कि वो साबित करे कि आलमगीर अशरफ साहब का वीडियो गलत है, उनका मौक़िफ़ अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है। तो मैंने उन लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अपने फेसबुक में पोस्ट किया और दूसरे लोगों तक, दूसरे लोगों के जरिए जो दावा करने वाले, जो चैलेंज करने वाले हजरात थे उनको मैंने भेजा। तो उन लोगों की तरफ से 3 दिन तक कोई जवाब नहीं आया और आखिरकार फेसबुक पोस्ट कमेंट के जरिए उन लोगों ने कहा कि हजरत ये बात सैयदपुर से, हिंदुस्तान से हजरत ये बात को शुरू किए हैं, स्टार्ट किए हैं, जिसको मुनाजरा करना है आप हजरत से कीजिए। उन्हीं में एक फर्द है गुलाम कादिर अशरफी उर्फ हीरा अशरफी, जो खानकाह अशरफिया के वो इमाम, खतीब और खलीफा भी हैं। तो उन्होंने उस बंदे को भी दुकान पे वो भी गए थे, उस 50-60 अफराद में वो भी थे, और उन्होंने फेसबुक कमेंट पे वाज़ेह तौर पे कहा कि ये आलमगीर अशरफ साहब का हजरत का नंबर मैं देता हूँ, हजरत से कांटेक्ट करके कहिए राहत आशिकीन साहब को कि वो हजरत से मुनाजरा करे, बहस करे, जो भी बात करना है। हजरत ऑनलाइन पे ऑल टाइम तैयार है। उसके बाद मैं 11 मई को हजरत जनाब आलमगीर अशरफ साहब से मेरी बात हुई, 4 बार कॉल किया, तीसरी मरतबा बात हुई। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी तो गुजरात में हूँ, फिर मैं नागपुर जाऊंगा, वहां से 16 को मॉरिशस जाऊंगा, उसके बाद डेट दूंगा। तो 16 तारीख के बाद उनसे मेरी बात शुरू हुई व्हाट्सएप वॉइस के जरिए। मेरी वॉइसेस उनके पास मौजूद है, उनकी वॉइसेस पूरी मेरे पास सही सलामत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जो है बातचीत तय होकर ये तय पाया कि 23 मई 2024 बरोज़ जुमेरात 2 बजे ये मुनाजरा होगा। तो नाजरीन, ये सूरत हाल था। उनका कहना कि हजरत अली विलायत में, रूहानियत में अफजल और पहला है, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदे की तरफ उन्होंने मंसूब किया। तो मेरा उनसे यही है कि आप मुद्दाई है, अहले सुन्नत वल जमात के किताबों से आप ये साबित करेंगे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु विलायत रूहानियत में अफजल है, पहला है। क्योंकि आपने ये भी दावा किया पहले में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो अफजलियत है वो मुतलका है, ये भी मैं कर दूं। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ ये दावा किया कि विलायत और रूहानियत में अफजल और पहला है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनका सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो अफजलियत है वो अफजलियत मुतलका है। तो वो अफजलियत मुतलका भी साबित करेंगे, उससे मुराद उन्होंने क्या लिया। फिर अफजलियत मुतलका में जो उन्होंने तखसीस की है, तक़यीद की है रूहानियत और विलायत की, और हजरत अबू बकर की अफजलियत को रूहानियत और विलायत की अफजलियत से उन्होंने तखसीस और तक़यीद की, इस्तिस्ना किए, उनकी भी वो अहले सुन्नत वल जमात के मुसल्लम किताबों से वो दलील देंगे, मैं भी दलील दूंगा इंशाअल्लाह। अब हमारा मुनाजरा का टाइम स्टार्ट होता है और हमारे हजरत जो है आपने मेरी बात का जवाब अभी का नहीं दिया, क्योंकि मैंने गुज़िश्ता बात के सवाल मैंने अभी कहा कि मैंने लास्ट में एक बात कही है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, मैं कई बार कह रहा हूं कि मां साहब, सैयद साहब, मैं पूरी तैयारी करके आया हूं, वरना ये ऑनलाइन नहीं आता। हजरत हम भी तैयारी किए हुए हैं, आप भी तैयारी किए हुए हैं, कोई बात मैं नहीं कह रहा हूं। जो बात मैं कहना चाहता हूं, अगर ये ऑनलाइन डिबेट कहें, मुनाजरा कहें, जो बात कहें, अगर ये बात अहले सुन्नत व जमात के नजदीक जो आपके मुसलमात हैं, जो आप समझ रहे हैं, उसको चोट पहुंचेगी, आप जिसे समझ रहे हैं, मैं इस बात को कोट कर रहा हूं, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे या वो सैदपुर के लड़के होंगे।
मेरा आपसे मुतालबा ये है, बार बार ये है, क्योंकि जब आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगे, मैंने आपको क्यों कहा था कि मेरी वीडियो को गौर से सुने, उसमें राज था, और वही राज मैं आज आपको अपनी दलील के तौर पे दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, उस चीज को आप समझिए। ऑनलाइन का मुतालबा मुनाजरे का आपका था, क्या आपके हक में, अहले सुन्नत व जमात के हक में बेहतर नहीं होगा कि आप रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करने के बाद पूरी दुनिया को भेज दें, अगर आपको लगे कि इससे तब्दीलियों को एक बहुत ज़रफ़े कारी लग रही है। बाकी आपका अपना मकसद, अपना इजहार ख्याल फरमाएं। इस बात पर मैं आपसे इजहार ख्याल चाह रहा था, ना कि गुज़िश्ता बातों से, उसके बाद शुरू हो जाती है बात। ठीक है, आप चूंकि हमने चैलेंज किया, आपने एक्सेप्ट किया ऑनलाइन के बारे में, ठीक है। अब इसका नतीजा क्या होगा, नहीं होगा, वो सबके सामने होगा। आप ताखिर ना करें, आपके भी नाज़रीन इंतजार कर रहे हैं और हमारे भी नाज़रीन इंतजार कर रहे हैं। आप अपनी दलाइल पेश करना शुरू करें, ठीक है। आप अपना दावा पेश करें, अपना दावा पेश करें और अपनी दलाइल पेश करें। नाज़रीन कराम, मेरी एक वीडियो जिसको बहुत तफसील से बताने की जरूरत नहीं, जिसमें मैंने ये कहा, सर आपकी टाइम शुरू हो गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत मुतलका है, और रही बात विलायत में, रूहानियत में, तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अफजल। फिर उसको दोहराया, क्या तुमने शजरा नहीं देखा? हज़रत मौला अली के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और अफजलियत मुतलका हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हासिल। ये हमारा दावा था। इस दावे पे मुआरजा कायम करते हुए जब फोन पे बात हुई और वॉइस मैसेज के जरिए हुई, तो मौलाना सैयद राहतुल आशिकीन ने कहा कि आपका ये दावा बातिल है, इसलिए कि 1400 साल से उम्मत का इस बात पर इजमा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो अफजलियत है वो हर एतबार से है, विलायत में, करामत में और इंदल्लाह व अकरम। और ये अकीदा जो आपने बतौर दावा पेश किया है, ये शिया तब्दीलियों का है। नाज़रीन कराम, मैंने बार बार ये कहा था कि लोग मेरी वीडियो को सुने, बार बार मैंने ये कहा था कि लोग मुझसे बात करें। आइए मतलुल क़ब्रैन, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं। कहते हैं दूसरे अल्फाज में, पहले को फजीलत कुल्ली का मिस्दाक और दूसरे को फजीलत जुज़वी का हामिल कहते हैं। इसके बाद फरमाया कि फजाइल अपने दर्जात के एतबार से मुख्तलिफ व मुतफावित हैं, ऐसा नहीं कि सब बराबर हों, लिहाजा जब दो मुख्तलिफ फजीलतों वाले जनाब किताब, यहाँ किताब कहाँ? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हार्ड कॉपी नहीं दिखा सकता, ठीक है, पीडीएफ मेरे पास है। अच्छा, और आप, हाँ, तो जो पीडीएफ मैं भी सफा नंबर आप कह रहे हैं, मैं आपको सफा नंबर भी बताएंगे आप। ये पहले भी सुन लें, सफा नंबर भी, सारी चीजें। पहले मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि ताकि आप दावे के तौर पे इसको समझ जाएं, ठीक है। जी, सफा नंबर और सारी चीजें वो सब है। अब यहां पर जो बात कही जा रही है कि ताकि आपको जो है सफा नंबर के हिसाब से भी पता चल जाए कि आला हज़रत ने कहां पे ये बात कही है। हाँ, ये सफा नंबर 66 मुफ्ती हनीफ साहब की है, ठीक है। दूसरे अल्फाज में ये मतलुल क़ब्रैन है, पहले को फजीलत कुल्ली का मिस्दाक, दूसरे को फजीलत जुज़वी का हामिल। इसके बाद फरमाया कि फजाइल अपने दर्जात के एतबार से मुख्तलिफ व मुतफावित है, ऐसा नहीं कि सब बराबर हो, लिहाजा जब दो मुख्तलिफ फजीलतों वाले अशखास के बारे में सवाल किया जाए
तो अफजल मुतलक उसे कहेंगे जो आला फजल और शरफ का मालिक होगा। और जब दूसरे शख्स को अफजल कहा जाए तो उसमें खास सिफत और फजीलत की कैद लगाना जरूरी होगा। यहाँ पे इमाम अहले सुन्नत ने ये बात कही कि जो हजरत अबू बकर या शेखैन की जो अफजलियत है वो अफजलियत कुल्ली है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हजरत शेखैन की अफजलियत ये हजरत शेखैन की अफजलियत मुतलका है, तो उसका मतलब होता है कि ये अफजलियत कुल्ली है। और कुल के मुकाबिल में कैद के साथ कोई चीज आए तो वो जुज़वी हुआ करता है। आपने सबने ये समझा कि यहां पर जुज़वी को आपने कुल्ली का रूप दिया। याद रखिए, विलायत रूहानियत की बात जो जुज़वी तौर पर हो रही है, ये फजीलत मौला अली अलैहिस्सलाम व करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, क्योंकि कुल के बाद जुज़ आता है। और जहां पर अहले सुन्नत व जमात का इख्तलाफ जुज़ में है ही नहीं, जुज़वी में है ही नहीं, बल्कि अहले सुन्नत व जमात का इख्तलाफ कुल में है। पूरी तारीख शियत, पूरी तारीख राफ़ज़ियत में कोई एक बंदा ऐसा दिखा दें जो ये कहे कि हजरत शेखैन की अफजलियत मुतलका है, हजरत शेखैन की अफजलियत ये कुल्ली है, और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अफजलियत जुज़वी है। जबकि मेरा दावा यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत कुल्ली है, और हजरत मौला अली की जो अफजलियत कहें, फजीलत कहें, ये जुज़वी है। जुज़वी फजीलत भी कहते हैं, कुल्ली फजीलत भी कहते हैं, फजले कुल्ली भी कहते हैं, और उसे कुल्ली अफजलियत भी कहते हैं, फजले जुज़वी भी कहते हैं, उसे अफजलियत जुज़वी कहते हैं। अब आइए दूसरी तरफ, क्या ऐसा होता है कि नहीं कि एक जहां अफजलियत बोल करके कि कहीं पर अफजलियत बोला जाए और अफजलियत बोल करके वहां पर जुज़वी फजीलत मुराद ली जाए, क्योंकि जब अहले सुन्नत व जमात का ये मुत्तफका अकीदा है कि अफजलियत कुल्ली के बाद जो भी फजीलत होगी, जो भी आप उनके खसाइस बयान करेंगे, वो कुल्ली नहीं होगा और वो अफजलियत शेखैन के मुनाफी और मुआरिज नहीं होगा। आप अगर इस ताल्लुक से देखना चाहते हैं तो एक हदीस पाक जिसको तिरमिज़ी शरीफ में नकल की गई है, और उस हदीस पाक को खासों से जनाब फैसल साहब ने अपनी किताब निहायतुद दलील में जुज़ुतुत तहकीक के खिलाफ आपने लिखी, और उसमें एक बात कहते हैं, और वो बात ये कहते हैं कि अल्लामा साहब ने जो हजरत मौला अली को अफजल साबित करने की कोशिश की है उस हदीस पाक से, तो वो हदीस पाक से उनकी अफजलियत साबित नहीं होती। मैं वो हदीस पाक कोट करूंगा पहले और फिर हवाले के तौर पे दूंगा। हदीस पाक ये है तिरमिज़ी शरीफ की, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हैं कि हजरत जाफर तैयार मेरे नजदीक, मफहूम बयान कर रहा हूं, कि मेरे नजदीक तमाम में सबसे अफजल आला है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि हजरत जाफर तैयार मेरे नजदीक तमाम में सबसे अफजल आला है। इस पर जनाब फैसल साहब कहते हैं कि देखिए कि ये जो आपने हदीस बयान की, आपने हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल की ने जो रवायत नकल की है उस पर तवज्जो नहीं, और हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं कि हजरत जाफर तैयार की जो अफजलियत है वो जूदो सखा में है। किसमें है? जूदो सखा में है। तो जब कुल के मुकाबले में कोई चीज बोली जाती है वो जुज़वी होती है, वो फजीलत वाली होती है, वो कुल्ली नहीं होती, वरना हर खुसूसियत दूसरे पर अफजल हो जाएगी, लेकिन खुसूसियत अफजल का बाइस नहीं बनती
खुसूसियत फजीलत का बाइस बनती है जब आप ये तस्लीम कर लें कि हजरत शेखैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की अफजलियत मुतलका। अब वो हवाला जो हकीकतुत तफसील में है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला मा इतज़म नियाला वलन नियाला वला रकिबल मताया वला रकिबल पूरा बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफज़लु मिन जाफर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि कोई जूता पहनने वाला, जमीन पे चलने वाला, सवारियों का सवार और कुजावे में बैठने वाला शख्स रसूलुल्लाह के बाद सैयदना जाफर से अफजल नहीं है। ये जो अफजलियत बयान की है ये अफजलियत जुज़वी है, ये अफजलियत फजीलत में है, क्योंकि लफ्ज़े अफजल बोलकर आप ये माना मुराद नहीं ले सकते कि वो अफजलियत मुतलका है, जबकि आपका अकीदा ये हो कि आप शेखैन की अफजलियत को मुतलक मानते हों, बगैर किसी कैद के मानते हों, और तमाम सहाबा की अफजलियत कहें, फजीलत कहें या उनके खसाइस कहें, वो आप जुज़वी तौर पर कैद के तौर पे मानते हैं। आप मुझे दिखाते रहेंगे ताकि आपको ये ना हो कि मैंने टाइम कितना बचा है, उसके बाद फिर आगे गुफ्तगू होगी। 10 मिनट 5 मिनट है। तो आपका ये दावा, हाँ, आपका ये दावा करना कि ये अहले सुन्नत व जमात के मौक़िफ़ के खिलाफ है, याद रखिए अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ इस बात में है और खिलाफ इस बात में है कि शेखैन पर कोई चीज मुतलक नहीं हो सकती। फजाइल खसाइस में अहले सुन्नत व जमात का कोई इख्तलाफ नहीं है। बहुत से सहाबा एक दूसरे पे फजीलत रखते थे, मगर ये फजीलत अफजलियत की दलील नहीं बन सकती, और अफजलियत की दलील इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि हजरत अबू बकर और हजरत उमर की जो अफजलियत है वो मुतलका है। और ये बात मेरी वीडियो से इस तौर पर वाज़े है क्योंकि मेरी वीडियो में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत को मुतलक कहा। जुज़वी अफजलियत में, जुज़वी फजीलत में किसी भी अहले सुन्नत व जमात के अक्सर उलमा के नजदीक या जमहूर के नजदीक तजाद या खिलाफ या इनकार नहीं है। यहां पे मैं आला हजरत फाजिल बरेलवी, आपकी आवाज कट गई, मेरे चैनल पर आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज जा रही है जी, मेरी आवाज जा रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। खैर, मुझे अपनी आवाज पहुंचानी है। अहले सुन्नत के नजदीक ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से किसी ने सवाल किया कि क्या अहले सुन्नत व जमात के नजदीक, और ये किताब फतावे अजीजिया है, सफा नंबर 213 है। मेरे चैनल से हाँ आ गए। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से सवाल हुआ कि अहले सुन्नत के नजदीक साबित है कि तब्दील शेखैन पर इजमा है, तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर शेखैन की तब्दील हर वजह से साबित है या नहीं? तो हजरत शेखैन की तब्दील हजरत अली मुर्तजा पर हर वजह से नहीं है, बल्कि उलमाए मुहक्किकीन ने लिखा है कि हजरत शेखैन में भी किसी से एक साहब की तब्दील दूसरे साहब पर हर वजह से साबित होना मुहाल है। इस वास्ते की हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जिहाद सैफी व सनानी में और फन क़ज़ा और कसरत रिवायत हदीस में और हाशिमियत और हनफियत में और अलल खुसूस इस वजह से कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ ज़ौजियत की क़राबत है, अफजल हैं। इन वजूह में हजरत अली की तब्दील हजरत अबू बकर पर कतई तौर पर साबित है, और ऐसा ही हजरत अली की तब्दील हजरत उमर पर कतई तौर पर इन उमूर में साबित है। हजरत उमर से पहले हजरत अली ईमान लाए और ऐसा ही पहले नमाज भी पढ़ी। मुराद इस अम्र से है कि हजरत शेखैन को हजरत अली पर फजीलत ये है कि हजरत शेखैन को हजरत अली पर सिर्फ इस उन उमूर में फजीलत है, सियासत उम्मत व हिफ्ज़ दीन व सद्द बाब फितना तदवीज अहकाम शरिया व ममालिक में इशाअत इस्लाम इकामत हुदूद व ताज़ीरात, ये ऐसे उमूर हैं
कि हाँ सब के मालिक आप अंजाम देते हैं। इससे ये जो शाह साहब ने अपनी बात कही है, यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि लफ्ज़े अफजल का इस्तेमाल जरूर किया और कहा कि बास खसाइस में हजरत मौलाए कायनात यकीनी तौर पर अफजल हैं, मगर ये अफजलियत फजीलत के माना में है, ये अफजलियत फजले जुज़ी है, ये अफजलियत फजले जुज़वी है, इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात के नजदीक हजरत शेखैन की अफजलियत पर इजमा है, उनकी अफजलियत पर की मुक़य्यद नहीं बल्कि मुतलक है। इसलिए कोई भी अफजलियत की हदीस भी आए और वो खबरे वाहिद नहीं, वो सही हदीस भी आए, और उस सही हदीस को अफजलियत का मेयार बनाया जाए, वो कभी भी अफजलियत का मेयार नहीं हो सकती, इसलिए कि हजरत शेखैन की अफजलियत मुतलका है। वो अगर लफ्ज़ अफजलियत इस्तेमाल होगी तो फजले जुज़ी के माना में, अफजलियत जुज़वी के माना में। मैंने अपने उस वीडियो में कहा हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत मुतलका है, और आला हजरत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का बातिल फिरकों से इख्तलाफ ये जुज़वी फजाइल में नहीं है, बल्कि इख्तलाफ ये फजीलत मुतलका और अफजलियत मुतलका में। ठीक, और जो वो बात की हजरत अली के ताल्लुक से, हजरत शेखैन के ताल्लुक से जो विलायत की बात आई कि हजरत आला हजरत फरमाते हैं कि विलायत 3 तरीके की होती है, एक में सब बराबर हैं, और वो विलायत एक है इलल्लाह, एक है मिनल्लाह और एक है फिल्लाह। इलल्लाह में सब बराबर हैं, मिनल्लाह में आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम हाफिज साहब नहीं है, हाफिज साहब नहीं, हाँ, ये देखिए 15 है ये। ठीक है, मैं बात खत्म करता हूँ, अगली बात जब आप शुरू करेंगे तो उसके बाद आपका। आप मेरे चैनल पे भी नहीं हैं, आप मेरे चैनल से गायब हैं। मैं आपके चैनल से गायब हूँ, ये उधर से होगा, हमारे यहाँ पे तो शो है। अच्छा हज़रत आपके वक्त खत्म हो गया, आपका वक्त खत्म हो गया। आप मेरे चैनल से गायब हैं, आपकी वीडियो न ऑडियो मेरे चैनल पे आ रही है, आपकी वीडियो मेरे चैनल से चली गई है। आप धीरज रखिए, अभी स्टार्ट हो जा रहा है। आप नहीं है मेरे चैनल पे है ना, आपने बात की देख रही है तो पहले। हाँ, तो मेरे यहाँ भी पूरी दुनिया देख रही है ना, हमारे यहाँ मेरे चैनल पे देख रहे हैं क्या? आप मेरे चैनल पे आइए, लोग इस पे जवाब देख रहे हैं। आप अपने सिस्टम को मेरे चैनल पे लाइए। हाँ, बेहतर है। अब देखिए, सही है, आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि पूरी दुनिया के नाज़रीन, चाहे जनाब आलमगीर अशरफ साहब के चाहने वाले हो या मुझ फकीर का चाहने वाला हो, चाहे बांग्लादेश के हो या हिंदुस्तान के हो, सब के सब जान रहे हैं कि इस मुनाजरे का, ऑनलाइन डिबेट का मौजू क्या है। मौजू ये है कि उन्होंने कहा था अपने वीडियो में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो अफजलियत है वो अफजलियत मुतलका है, और दूसरी उन्होंने कहा कि रूहानियत में, वलायत में हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम रूहानियत और विलायत में अफजल है, और रूहानियत में अली का पहला नंबर है। इन्होंने ये कहा था, इसी बात पे तय हुई थी। तो टॉपिक हमारा अफजलियत था, रूहानियत में, विलायत में, ना के फजीलत में था। अब आइए मैं आपको अफजलियत में आपको बताता हूं कि यार फजीलत और अफजलियत में फर्क क्या है। फजीलत और अफजलियत में आसमान और जमीन का फर्क है, जो मतलबुल कमरैन में सैयद आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने तहरीर फरमाया। उससे पहले मैं आइए कुरान पाक से मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया के लोगों को बताऊं कि अफजलियत सिद्दीक अकबर कहां तक है। उसमें किसी और का जब अफजलियत कुल बयान हो जाए, ठीक है, उसके बाद अफजलियत जुज़ी आती है या नहीं आती है, लाना दुरुस्त है या नहीं है, ये फैसला आप खुद कर लें।
और जनाब आलमगीर अशरफ साहब आप मेरी बात गोश गुजार होकर समाअत करें। पहला सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक जो ज्यादा मुकर्रम है, ज्यादा इज्जत वाला है, ज्यादा फजीलत वाला है, तुम में जो मुत्तकी है, अत्का है। इसके बारे में तफसीर कबीर, ये देखिए जनाब किताब की तरफ तवज्जो कीजिए, मैं किताब दिखा रहा हूँ आपको, हार्ड कॉपी, ठीक है। हाँ, ये किताब तफसीर कबीर में इसके बारे में, इस आयत के बारे में फरमाते हैं अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा के यहाँ अत्काकुम से मुराद जो है, सबसे पहला मुत्तकी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जिस पे तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है। उसके बाद आइए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरानुल करीम के दूसरे सूरह निसा के 69 नंबर आयत, सूरह निसा के 69 नंबर आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लज़ीना अनअमल्लाहु, जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनाम फरमाया, वो कौन है? मिनन नबिय्यीना, वो अंबिया में से है। पहला कौन है? अल्लाह ने जिन पर इनाम फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, पहला जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया वो कौन है? मिनन नबिय्यीना, नबीजीन है। उसके बाद सिद्दीकीना, मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना, नबीजीन के बाद जो अफजल है, नबीजीन के बाद जो मरातिब है, नबीजीन के बाद जो रूहानियत में हो, विलायत में हो, इमामत में हो, खिलाफत में हो, किसी भी एतबार से हो, वो किसका मर्तबा है? सिद्दीकियत की मर्तबा है। इस बारे में तफसीर कबीर जिल्द 4 सफा नंबर 149, इस आयत के बारे में तफसीर कबीर में ये देखिए, तफसीर कबीर जिल्द नंबर 4, इसमें अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा लिखते हैं क्या, कि यहाँ पे मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, सिद्दीकीन से मुराद तमाम सिद्दीकीन हैं। कब? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने सिद्दीकीन हैं, तमाम सिद्दीकीन का इसके बारे में इसमें शामिल है। और पहला जो सिद्दीक है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात। तो इस आयत से, इस आयत के बारे में सहाबा किराम का भी और मुफस्सिरीन किराम का इजमा है, जो सफा नंबर 149 में 149 में जिल्द 4 तफसीर कबीर में अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा ने लिखा है, आई कान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो अब नबीजीन के बाद सबसे पहला जो मकाम है, सबसे पहला जो नंबर है, सबसे पहला जो अफजलियत है, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, ठीक है। उसके बाद आइए सिद्दीकीन में पहला किसका नंबर है? नबी के बाद रब फरमा रहा है कि नबीजीन के बाद जो है वो मकाम है वो सिद्दीकीन का, और सिद्दीकीन में सबसे पहला सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। सिद्दीकीन में सबसे पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाद, कुरान करीम के बाद आइए बुखारी शरीफ की तरफ जाते हैं। बुखारी शरीफ में 46 नंबर बाब, ये देखिए बुखारी शरीफ अल काहिरा बैरूत मिस्र की छापी हुई है, अल काहिरा बैरूत मिस्र की छापी हुई है। अब इसमें सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह 46 नंबर बाब बांधते हैं, बाबू अहलुल इल्मी वल फद्री अहक्कु बिल इमामती। उसके बाद लिखते हैं हदीस पाक, हदीस नंबर 678, अन अबी मूसा क़ाल मरिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्तद्दा मरदहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक अबू मूसा अशअरी, अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी रिहलत से पहले, दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले बीमार हुए, और जब बीमार हुए उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, कि अबू बकर को कहो कि अबू बकर नमाज पढ़ाए, लोगों की इमामत करें। उसके बाद यही हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में 948 नंबर में है। उसके बाद बुखारी शरीफ में, इस हदीस पाक के बाद बुखारी शरीफ में मोहम्मद बिन हनफिया, जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शेर खुदा के आल हैं, वो फरमाते हैं क्या, कि मैंने अपने वालिद से पूछा, अय्युन नासी खैरुन बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद रसूलिल्लाहि ला बादु, बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाद जो है ये मुदाफ, उसके बाद रसूलिल्लाह, ये रसूल जो है ये मुदाफ इलैहि है। क़ाला अबू
तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कौला अबू बकरी, हजरत अली ने फरमाया अय्यु, पूरी दुनिया के लोगों में सबसे अफजल सबसे बेहतर है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है 3673 नंबर, वहां भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जिस कौम में, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक जिसमें सैयदुना रसूल करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मत में तो अगर अबू बकर मौजूद रहे, आइए आपको अरबी इबारत सुनाता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकरिन अय्युअम्महुम ग़ैरहु, कि जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो उस कौम में यह मुनासिब नहीं कि कोई और इमामत करे। तो मोला ये सवाल है जनाब आलमगीर अशरफ साहब से, इमामत किसे मिलती है, इमामत का हकदार कौन है? ये फिक़ह की तमाम किताबों में है, इमामत का हकदार वही है जो पहला मुत्तकी है, जो परहेजगार है। अगर हजरत अली विलायत में अफजल और पहला थे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ ना के माज़अल्लाह नाइंसाफी उन्होंने कहा कि इमामत में एक बंदा मुकम्मल है, हजरत अली विलायत में तकवा में वो पहला है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी पाक ने भेजा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस बात से ये बात सादिर होती है। उसके बाद आइए तारीखुल खुलफा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ये देखिए तारीखुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन की किताब, उसमें फरमाते हैं क्या, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद रावी, हजरत क़ौला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ला युफद्दिलुनी अहदा अला अबी बकरिन व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। हजरत अली मौला शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं किसी ने भी मुझ पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अगर मुझको फजीलत दे, युफद्दिलुनी अहदा अला अबू बकरिन, कि जिसने मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर फजीलत दी तो मैं उसे मुफ्तरी का 80 कोड़े हद लगाऊंगा। हजरत अली फरमा रहे हैं कि उन पर अगर अबू बकर सिद्दीक पर मौला अली को अगर फजीलत दी जाए तो क्या है, हजरत अली उसे 80 कोड़े लगाएंगे। उसके बाद आइए इस बारे में सहाबा का इजमा है, सहाबा किराम का इजमा क्या है, अहले सुन्नत वल जमात का इजमा क्या है, आइए आपको मैं बताता हूँ। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3655 अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला कुन्ना बैनन नासी फी ज़मानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुखय्यिरु अबा बकरिन सुम्मा उमर बिन खत्ताब सुम्मा उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सबसे ज्यादा फजीलत देते थे, सबसे ज्यादा तक़वे में हो, इमामत में हो, खिलाफत में हो, हर एतबार से हम जो फजीलत देते थे किसे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। इसके बारे में इब्ने हजर अस्क़लानी फतहुल बारी में, ये देखिए फतहुल बारी सफा नंबर 21 में जिल्द नंबर 7 में वो इब्ने हजर अस्क़लानी फरमाते हैं सहाबा के इस बारे में इजमा है, और सहाबा ने इसी पे इत्तिबा किया कि सबसे अफजलियत जो है वो अबू बकर सिद्दीक की है। तारीखुल खुलफा में सैयदना इमाम सुयूती अलैहि रहमा वो नकल फरमाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दलील दूंगा अइम्मा मुज्तहिदीन का क्या अकीदा है इस बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट आपने लिया था, मैं भी 1 मिनट ले रहा हूँ। आपने जो अभी अदिल्ला पेश किया उसमें अफजलियत और फजीलत का जनाब आपको फर्क ही पता नहीं। जहां फजीलत की बात हो वहां लफ्ज़ अफजलियत यूज नहीं की जाती, जहां फजीलत हो वहां अफजलियत यूज नहीं होती। अभी रुकिए, ठहरिए। उसके बाद आपने इबारत पढ़ा, गलत इबारत पढ़ा, आपने हदीस पाक पढ़ा, गलत पढ़ा, वहां पे आपने पढ़ा सैयद जहांगीर अशरफ साहब, आपको वक्त दिया जाएगा, आप अभी ना बोलें, आपको बोलने का भी कोई हक नहीं। आपके टाइम में मैंने काउंटर नहीं किया। आपने इबारत पढ़ी क्या, अरबी इबारत आपने पहले हदीस के नहीं पढ़ी, दूसरी इबारत आपने पढ़ा बाद रसूलुल्लाह। अरे जनाब आप अल्लामा साहब है, बाद रसूलुल्लाह, अरे मदरसे के जो उला की तलबा है, सानिया के तलबा, उन्हें पता है बादा के बाद जो आता हुआ मुदाफिल है बाद रसूलुल्लाह होता। आपको तो ग्रामर भी नहीं आती हजरत, मैं पहले भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपने बादा रसूल नहीं, आपने गलत पढ़ा। मैं कह रहा हूँ मैं दातियत पे नहीं, आपने गलत पढ़ा, आपने इबारत गलत पढ़ा, आपने इबारत गलत क्यों पढ़ी आपने? नहीं, आप गलत पढ़ा। उसके बाद आपने इबारत में गलत पढ़ी, उसके बाद आपने जो हदीस पढ़ी, दूसरी इबारत आपने जो पढ़ी जिसमें अरबी पढ़ी, आपने अरबी इबारत गलत पढ़ी। उसके बाद आपने वो हदीस लाया जो मौजू है। तो अफजलियत में मौजू हदीस कबूल नहीं होती है, फजीलत में होती है। आपकी इबारत अफजलियत, और आपके वीडियो में आपने कहा था क्या, हजरत सैयदना अली की जो
अफजलियत है वो रूहानियत में है, विलायत में अली का पहला नंबर हजरत अली अफजल है। क्योंकि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया, जो हजरत, ये देखिए अल-फिक़्हुल अकबर में मुल्ला अली क़ारी इशारा करते हैं, इमाम आजम की किताब, आपके इमाम की किताब, पूरे अशरफी घराने, पूरी सुन्नी घराना, पूरे जो अहले सुन्नत वल जमात वाले, उनके इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अफ़्ज़लुल औलिया मिनल अव्वलिन वल आखिरीन, और औलिया में सबसे अफजल आखिरीन और अव्वलिन में, आदम से लेकर क़यामत तक जितने औलिया हैं सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। इसके बाद फरमाते हैं क्या, कि जो शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अली को फौकियत दे, अली को तफजील करे, युफद्दिलूना अलियन अली अबी बकरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना जमीअ रवाफिद व अक्सर मुअतजिला, कि वो रवाफिज और मुअतजिला का अकीदा है। किसी भी एतबार से अफजल आप ये कह सकते थे कि फजीलत अली में, ठीक है। उसके बाद आपने ये कहा, उसके बाद आपने कहा कि हजरत अली का पहला नंबर, तो हजरत अली का पहला नंबर फजीलत में आप कहते, अफजलियत में आपने क्यों कहा? अफजलियत में अगर आप ये बात जो आपने वीडियो में आकर कहा कि हमने फजीलत जुज़िया कुल ली, तो इस बारे में जो है, अब आइए अइम्मा मुज्तहिद इमाम आजम ने क्या फरमाया कि अफ़ज़लुन नासि बअद रसूलिल्लाह अबू बकर। उसके बाद इमाम मालिक फरमाते हैं, मुअत्ता इमाम मालिक में 395 नंबर सफा, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न, इसमें फरमाते हैं कि सबसे अफजल जो है वो अबू बकर सिद्दीक है। इमाम शाफी फरमाते हैं, फी खिलाफती व तफदीली नब्दउ बि अबी बकरी, कि हम लोग क्या खिलाफत में और तफजील में अफजलियत में हम अबू बकर को मानते हैं। तो जहां अबू बकर की अफजलियत आ जाए, वहां पे किसी और को मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुद फरमाते हैं क्या, कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझ पर कोई अगर अबू बकर पर मुझको अगर कोई फजीलत देता है, वो क्या है, उस पे मैं ये करूंगा, उसके मैं 80 कोड़े मारूंगा, हद मारूंगा। अब आइए, आपने मतलब कमरन की बात की, ये देखिए, ये फतवा रज़विया शरीफ, फतवा रज़विया शरीफ, ये देखिए फतवा रज़विया शरीफ है, ये इसमें सैयद आला हज़रत रहमा फरमाते हैं क्या, सफ़ा नंबर 234 पे, सहाबा किराम में सबसे अफजल व अकमल व आला व अकरब इल्लल्लाह खुलफाए अरबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे, और उनकी फजीलत और विलायत बितरतीब खिलाफत, जिसकी खिलाफत पहला उसका अफजलियत पहला, जिसके खिलाफत दूसरा उसकी अफजलियत और विलायत भी दूसरा, जिसके खिलाफत तीसरा चौथा उसकी फजीलत उसकी विलायत भी तीसरा चौथा। तो अफजलियत ये जुमला कहना कि विलायत में रूहानियत में हजरत अबू बकर हजरत अली अफजल है, ये सरासर अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के खिलाफ है, आपके इमाम सैयदना इमाम आजम के खिलाफ है, हमारे इमाम आला हजरत की इबारत के खिलाफ है। मतलब कमेंट में जो बहस की थी वो सैयदी आला हजरत फजीलत में बयान किया था, और आला हजरत ने अपने दलील में खुद फरमा दिया कि अफजलियत और विलायत में सहाबा किराम की जो तरतीब है वो खिलाफत के मुताबिक। तो आपने जो कहा अफजलियत की बात पहला नंबर है, आपने इनकार किया मुनाज़रे में आकर, ठीक है। तो अब जो है, अब 2 मिनट बाकी है, अब कुछ सेकंड बाकी है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप अब अपना मुआक्ता पेश करें और जो भी बात करेंगे दलील दिखाइएगा। आपने किताब नहीं दिखाया, ठीक है, आप PDF की सफा नंबर तो कह सकते थे हर किताब की। उसके बाद मैं बता रहा हूँ बाद में, मैंने जो भी कहा आपको किताब दिखाया, आपको मैंने रेफरेंस दिया, आपको मैंने इमाम पढ़ के सुनाया। जनाब ने भी एक बात, हजरत आप लोगों से गुजारिश है, मेरी एक गुजारिश है, बीच में बात ना करें। लफ्ज़े अफजलियत का इस्तेमाल नहीं कर सकते उस शख्स के लिए जो फजीलत वाला, ये बात आपने कही या नहीं? आपका वक्त लेकिन शुरू हो गया है जी, आपने ये कही या नहीं कि लफ्ज़े अफजलियत का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो साहिब फजीलत है? आपने कहा नहीं, आपने कहा ना कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला रूहानियत और विलायत में अफजल है। आपने ये बात कही थी ना अपनी वीडियो में, आपने कहा ना, ठीक है ना। तो मैं आपको दलील दिखा, मेरी बात नहीं थी, इमाम आजम की बात है। फिर बोलिए। इमाम आजम ने कहा, मैं नहीं कह रहा, इमाम आजम ने, इमाम बुखारी ने, सहाबा के इजमा ने, मुफस्सिरीन के इजमा ने, सबने कहा। हाँ, मैंने आपको कहा अभी, इमाम आजम ने कहा, आला हज़रत ने कहा, तमाम ने कहा कि लफ्ज़े अफजलियत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए, जिस हदीस पाक के ताल्लुक से तिरमिज़ी शरीफ के ताल्लुक से है, उसके अलावा वो हदीस पाक इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इस हदीस को अपनी किताब मुस्नद अहमद में
9353 में यूं नकल किया है। और ये बात आप देखिए कि ज़ुबदतुत तहकीक का तनकीदी जायजा, जिसको जनाब फैसल साहब ने लिखा है, ज़ुबदतुत तहकीक सफा नंबर 38, सफा नंबर 38, ज़ुबदतुत तहकीक का तनकीदी जायजा, ज़ुबदतुत तहकीक का तनकीदी जायजा। आप कहते हैं इमाम अहमद इब्न हंबल ने इस हदीस को अपनी मुस्नद अहमद में रकम किया। क्या अफ़ज़ल मिन जाफर इब्न अबी तालिब यानी फिल जूद वल करम, यानी हजरत जाफर इब्न तैयार, हजरत जाफर तैयार ये जूदो करम में अफजल हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि हजरत जाफर इब्न तैयार सिर्फ और सिर्फ जूदो करम में ही अफजल हैं, ना कि मुतलकन हजरत अबू बकर से अफजल हैं। तो लफ्ज़े अफजल का इस्तेमाल, लफ्ज़े अफजल का इस्तेमाल क्या गैर के लिए हुआ या नहीं? दूसरी बात, जो आप ये कह रहे हैं कि लफ्ज़े अफजल का इस्तेमाल नहीं हो सकता, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने साफ तौर से कहा है कि अगर साफ तौर से अपने मतलुल कमरैन में ये बात कही है, और आपको सुना देता हूं, सफा नंबर 108, सफा नंबर 108, वो तफसीलात साबिका से वाज़े हो चुका, वो तफसीलात साबिका से वाज़े हो चुका है कि सहाबा में अक्सर हजरात खिलते हाय खास से मुशर्रफ थे। हर एक को अपनी उस फजीलत खासा में अफजल कह सकते हैं, अपनी उस फजीलत खासा में अफजल कह सकते हैं, अपनी उस फजीलत खासा में अफजल कह सकते हैं। तो भी जरूर फजाइल जुजिया की हमले अफजल बितकीद के मुजव्विज हैं। मुरद निजा वो सालिह इख्तलाफ नहीं हो सकते, बल्कि मां बही निजा वही फजल कुल्ली मुसाहे इतलाक अफजल बर इतलाक है। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी की ये इबारत अहले सुन्नत व जमात के तमाम लोगों को चीख चीख के कह रही है कि इख्तलाफ फजीलत कुल्ली में है, अफजलियत कुल्ली में है, अफजलियत मुतलका में है, खसाइस में कोई इख्तलाफ नहीं है। और अगर कोई खुसूसियत हो उसको लफ्ज़े अफजल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये फजले जुजी कहलाएगा, ये खुसूसियत कहलाएगी, क्योंकि उसने मुतलक का इकरार कर लिया है। अभी तक जो आपने तमाम कुरान से, अहादीस से जिस बात की गवाही दी है, जिस बात के अपने ताइद में दलीलें पेश की है, याद रखिए हम तो उसके खिलाफ है ही नहीं। अगर उसके खिलाफ होते तो हजरत सिद्दीक अकबर या शेखैन की अफजलियत को कुल्ली मानते ही नहीं, हम उनकी अफजलियत को मुतलका मानते ही नहीं, हम तो शेखैन की अफजलियत को मुतलका मानते हैं। उसके बाद किसी की भी फजीलत हो या किसी की फजीलत को लफ्ज़ अफजलियत के साथ इस्तेमाल किया जाए, वो उसकी फजीलत होगी, वो उसका फजल जुजी होगा। आप पर लाजिम है कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस इबारत का साफ साफ वाज़े तौर पर जवाब दें कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने साफ साफ कहा है कि लफ्ज़ अफजल का इस्तेमाल फजीलत में, फजल जुज़वी में किया जा सकता है। या आप कहें कि आला हजरत ने ये बात नहीं कही, मेरा दावा है, और आला हजरत ही नहीं बल्कि और तमाम लोग भी हैं जिन्होंने, बल्कि हाँ, आला हजरत की मतलुल कमरैन की तशरीह जो हुई है दूसरी किताबों में, वो मैं दिखा देता हूं। दूसरी किताबों में जो हुई है वो साफ तौर से कहते हैं कि अफजलियत ये जुज़वी में तक़यीद के साथ हो, कैद के साथ हो। आप किसी को यानी हजरत मौला अली को अफजल कहें, ये अकीदे अहले सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन यही बात शेखैन को मुतलकन अफजल कहें, यही अकीदे अहले सुन्नत के मुवाफिक है। तो अफजलियत जुज़ी कहें या फजल जुज़ी कहें या उसे खुसूसियत कहें,
ये तीनों हम माना है और ये अकीदे अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। और अभी आपने दावा किया कि लफ्ज़ अफजल नहीं बोला जा सकता। नाजरीन, उस वीडियो को पिछले जाकर के जहां पे मैंने टोका था तो इन्होंने कहा कि मैंने आपके वक्त नहीं बोला है, जा करके देख लीजिएगा। अगर आलमगीर अशरफ ने अभी उस बात को जो कोट किया है झूठा है तो आप मुझे हर बात में झूठा समझ लेंगे। इन्होंने कहा कि अफजलियत का इस्तेमाल फजीलत में नहीं कर सकते। आइए और देखें कि अफजलियत का इस्तेमाल फजीलत में किया जा सकता है कि नहीं। माने अफजलियत, ये भी बयान कर रहे थे ना, माने अफजलियत। हम अहले सुन्नत व जमात के नजदीक अफजलियत का माना है कसरत सवाब, यानी जो अफजल होगा उसे कसरत सवाब हासिल होगा। अफजलियत का दारुमदार किताब का नाम बता दूं, सैफुत तहकीक है और सफा नंबर 101। ये भी जो है ज़ुबदतुत तहकीक के खिलाफ लिखी गई है। अब ये कह रहे हैं कसरत फजाइल पर उसके ताल्लुक अकाबरीन अहले सुन्नत के हवालाजात पेश करने से कब्ल अफजलियत की जो तारीफ और वजाहत मौसूफ ने फरमाई है उसको नकल करते हैं। अफजलियत ऐसे वस्फ़ कामिल का नाम है जो किसी एक के अंदर पाया जाए जिसमें कोई दूसरा शरीक ना हो। अगर कोई दूसरा शरीक पाया गया तो वस्फ़ कमाल में फजीलत कहलाएगा, यानी फजीलत तो कहलाएगा, उसको अफजलियत कुल्ली नहीं कहेंगे, लेकिन लफ्ज़ अफजलियत का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यही सैफुत तहकीक है। देखिए, कहते हैं कि फजल लुगत में बमाना ज़ियादत और अफजल जो अपने गैर से ज्यादा हो, मगर हम जो नजर करते हैं तो बाज़ फजाइल ऐसे हैं जिनकी रूह से उनके मुत्तसिफ पर लफ्ज़ अफजल इरसाल और इतलाक महमूल होता है। किसी जेहत वो हैसियत से तक़यीद की हाजत नहीं होती है और बाज़ की रूह से क़ैद खास लगाकर इतलाक करते हैं। मुतलक छोड़ना रवा नहीं। मसलन एक शख्स फनून सिपागिरी में सारी बात अलग है। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब दो फजलतें मुतवाफिदा के दरमियान सवाल होगा तो अफजल मुतलक साहिब फजल शरफ पर महमूल होगा और दूसरे को अफजल कहेंगे तो उस फजल खास में कैद लगाकर ना कि मुतलकन। सैफुत तहकीक सफा नंबर 109। इन्होंने आला हजरत फाजिल बरेलवी की मतलुल कमरैन की तशरीह अपने अंदाज में की है कि जब हम अफजलियत मुतलका की बात करेंगे तो वो बगैर किसी कैद के, मतलब बगैर कैद के कहते ही हैं, लेकिन उसके बाद दो फजीलतें और एक मिनट है आपके पास, और एक मिनट है, दर्जात शरफ में मुतवाफिक हैं। तो ऐसे क्या हुआ तो अफजल मुतलक साहिब फजल शरफ पर महमूल होगा और दूसरे को अफजल कहेंगे उस फजल में खास की कैद लगा करके। आपने दावा किया था कि लफ्ज़ अफजल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरी वीडियो में वो जो लफ्ज़ अफजल है वो फजीलत जुज़वी पर है, ना कि उससे मुराद अफजलियत मुतलका। मैंने पहले बात खत्म कर दी। और कुछ कहना है तो कह लीजिए ना, बोलिए। आपने मैंने आपको दलील दिया कुरान से। सबसे पहला दलील मैंने आपको कुरान से दी, हदीस मुतवातिरा से दिया, उसके बाद मैंने आपको इजमाए सहाबा से दिया, उसके बाद मैं आपको इमाम आजम के कौल दिया, उसके बाद आपको मैंने फतवा रज़विया शरीफ से मुदल्लल जवाब दिया। अब आइए, आपने जो हदीस पाक बयान किया ये हदीस मुतवातिर के खिलाफ है और ये हदीस मुतवातिर नहीं है। तो गैर मुतवातिर हदीस मुतवातिर के खिलाफ अगर आए तो वो कबील नहीं होती है। इतना आपको याद रखना चाहिए, इतना याद रखना चाहिए। ये उसूल है, ये मेरी बात नहीं, ये उसूलीन की बात है। आपने जो हदीस पाक लाया वो गैर मुतवातिर हदीस है और मुतवातिर के खिलाफ जब कोई हदीस लाई जाए तो वो कबूल नहीं होती है, ये याद रखना चाहिए। नंबर 2, फैसल खान क्या इमाम आजम से बड़े हैं? फैसल खान क्या मौला अली से बड़े हैं? फैसल खान की किताब क्या अल-फिक़्हुल अकबर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की किताब से बड़ी है? आप खुद कहें, आपके इमाम की किताब, फैसल खान की किताब, वहां पे इबारत कहीं से भी वो लाएं, वो क्या इमाम आजम की किताब से बड़े? वो इमाम आजम की किताब से बड़ी किताबें अक़ीदतुत तहावी इमाम तहावी की किताब से बड़ी है क्या? तफसीर के इमाम की जो किताब है अक़ीदा नसफ़ी इससे बड़ी है? नहीं।
इमाम आजम, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, सिया सित्ता की हदीस पाक से किसी बंदे का कॉल, किसी आलिम का कॉल, किसी इस सदी के या ये नीचे के सदियों के मुताखिरीन की किताब जो है वो मुदल्लला काबिल कबूल नहीं होती। इसलिए दूसरी बात यह है कि उसके बाद आपने जुज़ई फजीलत कहा, जुज़ई फजीलत की आपने हदीस बयान की, तो जुज़ई फजाइल से अफजलियत कायम नहीं की जाती और अफजलियत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब मौला अली की मैं बात कर रहा हूँ, मौला अली, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शेर खुदा, हमारे मौला अली, हमारे मुश्किल कुशा, जौज़ाए बतूल, शोहर बतूल, दामाद रसूल, सैयदना मुश्किल कुशा अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैं उसे हद लगाऊंगा अगर मुझ पर, अगर अबू बकर पर अगर मुझको फजीलत दी जाए, अफजलियत अगर दिया जाए। उन्होंने भी ये फरमाया है। तो क्या हजरत अली से बड़े इन लोगों की किताबें? नहीं। आपने अफजलियत मुतलका का दावा किया, फिर आपने उसके बाद कहा क्या कि हजरत अली अफजल है रूहानियत में, विलायत में। तो आपने मुतलका कहने के बाद आपने ये तखसीस कैसे लगाई, ये बताइए। क्योंकि आप तो मुजद्दिद, आप तो मुजतहिद नहीं है, मुजतहिद का दावा आप नहीं करते हैं, और ना आप मुजतहिद है। तो मुजतहिद के अलावा बाबुल अकायद में किसी की बात कबूल नहीं होगी, चाहे वो कोई भी रहे। इमाम आजम अकीदे के इमाम है, इमाम तहावी अकायद के इमाम है, इमाम बुखारी मुहद्दिसीन है और अपने अपने दौर के कुल मुजतहिद हैं। मुजतहिद के सामने किसी एक बंदे का कौल काबिल कबूल नहीं होगी। और चूंकि आला हजरत की बात रही, तो आला हजरत ने वाज़ेह तौर पे फतवा रज़विया शरीफ में फरमा ही दिया है। फतवा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने फरमाई दिया है, क्या उन्होंने वाज़ेह तौर पे पढ़ा है, वो वाज़ेह तौर पे फरमाया, क्या फरमाया आप खुद पढ़, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप पढ़िए। ये उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने फरमाया क्या, अफजलियत विलायत बतरतीब खिलाफत। तो अफजलियत विलायत, तो विलायत में आप किस एतबार से कह रहे हैं कि मौला अली एक पहला है, मौला अली पहला, आला हजरत फरमा रहे, मैं आला हजरत की क्या इस किताब को आप झुटलाएंगे, फतवा रज़विया शरीफ के इस कौल को? नहीं, आप नहीं झुटला सकते। आला हजरत तो आप भी मानते हैं, मसला के अहले सुन्नत के हर मौलवी, हर सुन्नी इसको मानता है, हुजूर शेखुल इस्लाम भी मानते हैं, हुजूर इज़हार अशरफ भी मानते हैं, हुजूर कायद मिल्लत हुजूर महमूद अशरफ जिलानी भी मानते हैं, सब मानते हैं आला हजरत को। आला हजरत ने फरमाया अफजलियत की और विलायत की जो तरतीब है वो खिलाफत की तरतीब पे है। तो क्या आला हजरत की ये बात क्या गलत है? लताइफ अशरफिया में खुद हुजूर सैयदुना व सनदुना व मुर्शिदुना व आकाई मौलाई हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल और अकरम है तमाम साहबा में। तो क्या ये लोग हस्ती क्या सैयदना मखदूम पाक से बड़े हैं? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। और आपने मुतलक पर कैद कैसे आपने लगाई? अगर आप फजीलत जुज़ई की बात कर रहे हैं तो याद रखिए ये मसला बाबे अकाइद में से, बाबे फजाइल में नहीं। जुज़ई फजीलत जो है वो फजीलत के एतबार से कबूल है, लेकिन अकाइद के मामले में ये कबूल नहीं है। बहुत सही कहा। और जुज़ई तौर पे अगर बताइएगा तो बहुत सी फजीलत, बहुत से सहाबा, जुज़ई फजीलत हजरत हंज़ला को हासिल है, जुज़ई फजीलत साद बिन वक़ास को हासिल है, जुज़ई फजीलत कामिलुल हयाई वल ईमान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को हासिल है। आप अकीदे की बात करें, हदीस मुतवातिर से बात करें, आप बताएं कि मुतलक कहने के बाद आपने विलायत में पहला और अफजल, रूहानियत में अफजल कहा, ये अकीदे की किस किताब में है? इमाम आज़म की किस इबारत में है? इमाम आज़म की किस इबारत में है? बुखारी की किस हदीस पाक में है? मुतवातिर कौन सी हदीस है जहां ये कहा गया है कि अफजलियत कुल के बाद जुज़ई के एतबार से अफजल कहना, ये किसका कौल है जनाब? ये किसका कौल है? आप हमें बताएं। इमाम आज़म की इबारत पेश करें, आप कुरान पाक की आयत से आप बताएं, तफसीर कबीर से मैंने आपको अक्का बताया, मैंने आपको साबित कर दिया कि अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफजल है, और ये इजमाए सहाबा है, इजमाए अकीदा है, इजमाए इमाम मुज्तहिदीन है, ये सब का इजमा है। आप जो दावा कर रहे हैं हजरत अली को मैंने जुज़ई तौर पे अफजल कहा है, तो जुज़ई तौर पे फजीलत हासिल होती है, अफजलियत हासिल नहीं होती है। आप जुज़ई तौर पे अगर देखेंगे, अरे हजरत हुजूर सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू तालिब भी थे, जुज़ई फजीलत, हुजूर के चचा अबू लहब भी था, अबू लहब भी हुजूर की चचा था। तो क्या नस्ल के एतबार से जुज़ई फजीलत के उसे हासिल होगा? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। तो जुज़ई फजीलत की आप बात ना करें, आप अफजलियत की बात करें। आपने अफजल कहा है, अगर आप उस वक्त, मैंने जब आपको कॉल कहा था, आप कह देते मैंने जो अफजलियत कहा है, मैंने जो मौला अली को अफजल कहा है वो जुज़ई है, आपने ये बात नहीं कहा। अगर ये बात अगर होती तो बात की बात थी, आपकी तशरीह हो जाती, लेकिन आपने कौन भी कहा क्या मेरा मुवाक्कफ है, मेरा दावा है हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत मुतलका है और हजरत मौला अली की जो फजीलत है वो रूहानियत में, विलायत में अफजल और पहला है। तो अफजलियत मुतलका के बाद
आप किस तरीके से तकीद और तफ्तीश लगा रहे हैं जनाब? आप मुझे ये इरशाद फरमाइए। अभी बात हो गई जी, आप शुरू करें। सबसे पहले मौलाना 5 मिनट करके वक्त मिलेगा। आप जो है कुरान, अहदीस और मखदूम पाक, औलिया कराम के जो दलाइल दे रहे हैं, ये मुसल्लमा है अफजलियत मुतलका कहने के बाद। अफजलियत मुतलका अगर किसी ने कह दिया, इसका मतलब है वो अतका, इसका मतलब है वो मखदूम पाक के जो तरतीब अफजलियत की बात कही है वो उस पर कायम है। आपका सिर्फ सवाल और इतराज इस पर होना चाहिए और है कि अफजलियत का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। पूरे जिन लोगों ने भी ये बात कही है, खासतौर से आप देखें जो मैंने आपको हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की बात पेश की कि हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतावे अजीजिया में जब सवाल हुआ, अहले सुन्नत के नजदीक साबित है कि तब्दील शेखैन पर इजमा है, तो हजरत अली शेखैन की तब्दील पर हर वजह से साबित किया नहीं, ये मैंने पहले बताया था। अगर आप ये कहें कि अफजलियत ये फजीलत के माना में नहीं होगी, उसके लिए मुतवातिर हदीस या हदीस सही की जरूरत है, तो मुझको बता दीजिए वो कौन सी रूहानियत। आपने जो कहा रूहानियत में विलायत में पहला नंबर है, ये पहले साबित किए नहीं। आप पहले हुजूर मखदूम पाक की वो इबारत कीजिए जहाँ पे मखदूम पाक ने कहा कि विलायत में अली का पहला नंबर है। जब मैं ये कह रहा हूं, पहला नंबर पे चल रही है, जब मैं ये कह रहा हूं कि अफजलियत मुतलका के बाद कोई कैद लगाकर अगर किसी की फजीलत या अफजलियत की बात करता है तो उसे फजले जुज़ी कहते हैं। उसे ये इबारत कहाँ है हजरत? आपकी कहना काफी नहीं है, आप मुज्तहिद नहीं है, आप मुज्तहिद नहीं है, आप मुज्तहिद नहीं है। नहीं, आप पूरा कागज काबिल कबूल नहीं है, पूरा कागज काबिल कबूल नहीं। आप किताब दिखाए, वरना पीडीएफ आप किताब दिखाए, ये पूरा कागज हम भी दिखा सकते हैं। नहीं हजरत जनाब, पूरा कागज ना दिखाए आप पीडीएफ भेजिए, आप पीडीएफ भेजिए, शाह अब्दुल अजीज की बात की ना, आप वो भेजे। किस इमाम ने, किस इमाम ने मखदूम पाक ने कहा, फतावे अजीजिया सफा नंबर 414, मैं पीडीएफ आप किताब दिखाइए, मुझे पीडीएफ भेजिए, आप मुझे अभी भेजिए, आप भेजिए, इसलिए कि ज़बान में आपकी बात हो सकती है, आपकी बात हो सकती है, आपकी बात काबिल कबूल नहीं है। हाँ, मैं किताब दिखा सकता हूँ। मुतवातिर के खिलाफ वो बोल रहे हैं, मुतवातिर के खिलाफ। अरे जब अफजलियत मुतलका कह दिया, और रही बात अगर आप ये कहें कि उसके लिए सही और तवातुर हदीस की जरूरत होगी अफजलियत की, तो मुझे बताएं वो कौन सही और तवातुर वाली हदीस है जिसमें दीगर सहाबा हजरत अली से अफजल हैं, हजरत सिद्दीक अकबर से अफजल है। चलिए रूहानियत में नहीं, विलायत में नहीं अगर अफजल है। जनाब उसूल याद रखिए, उसूल से बात कीजिए, उसूल से हटकर बात मत कीजिए। बिल्कुल उसूल से कीजिए, ठीक है। तलाक़ुआ इजमा सहाबा नक्सर, हाँ। इस बात पे इजमा के सहाबा किराम का इजमा है, और इजमा के खिलाफ जाना जो है वो अकीदे के खिलाफ है। बिल्कुल, वो इजमा के खिलाफ आप नहीं जा सकते। आपने कहा दमा तो मत कलंदर अली का पहला नंबर, ये सुन्नियों का अकीदा है। किस सुन्नी ने कहा है अली का पहला नंबर? मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए। ये अफजलियत के खिलाफ नहीं है। अगर अल्लाह ने हजरत आदम को खलीफा बनाया है, अगर अल्लाह ने हजरत आदम को खलीफा बनाया है, पहले दुनिया में भेजा है, तो वो हजरत आदम की तख्लीक दुनिया में आने में वो आपसे पहला है, नबी की आमद में वो पहला है, अफजलियत में पहला नहीं है। सुनिए, आपने कहा अफजलियत में अली का पहला नंबर है। सुनिए, जब मुतलका के बाद लफ्ज़ अफजलियत का इस्तेमाल कैद लगाकर होता है, वो फजीलत जुज़वी होती है। आप दलील दिखाइए, किताब दिखाइए, किताब दिखाइए, पीडीएफ भेजिए, आप पीडीएफ भेजिए, ओके, आप पीडीएफ भेजिए, मैं पहले पीडीएफ भेजिए, मैं पहले ठीक है। आपने कहा अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर किसने कहा है हजरत? मैं बता रहा हूँ, दलील सुनिएगा, किसने कहा? छोड़िए, अब इसकी बात काबिल कबूल नहीं है। आला हज़रत की मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ आपके मोबाइल पर, फतावे अजीजिया, ठीक है। विलायत मैंने आपके मोबाइल पर मैं फतावे अजीजिया
आपके मोबाइल पर भेज रहा हूं, आपके मोबाइल पर भेज रहा हूं। आप भेजे भी और बताएं भी कि रूहानियत में और विलायत में अली का पहला नंबर और अफजल किसने कहा है हजरत? जब मैं ये कह रहा हूं कि अफजलियत मुतलका के बाद लफ्ज़ अफजलियत मुतलका के बाद लफ्ज़ अफजल का इतलाक जुज़ी तौर पे आप ये कह रहे हैं। हाँ, आपके अलावा इमाम आज़म ने कहा, इमाम आज़म ने कहा, आला हजरत ने क्या फरमाया? आला हजरत ने तो ये भी फरमाया है, आला हजरत ने ये भी फरमाया है, क्या फरमाया है? जिस आला हजरत ने फरमाया फतवा रज़िया शरीफ में, मैं आपको फतवा रज़िया शरीफ देता हूँ। आला हजरत नहीं, आप आला हजरत की बात कह रहे हैं ना हजरत, मैं भी आपको आला हजरत की बात कह रहा हूँ। मैं आपको, आप सबर करें, सबर करें। फजीलत वाले अशखास के बारे में सवाल किया जाए तो अफजल मुतलक उसे कहेंगे नहीं नहीं जनाब, नहीं, ये देखिए फतवा रज़िया शरीफ, फतवा रज़िया शरीफ में आला हजरत फरमाते हैं अफजलियत शेखैन कतई है। हम भी उसके बाद कोई हदीस में मुतवातिर भी है, अगर उसके बाद अफजलियत शेखैन अकीदे कतई है, इसमें कोई मुतवातिर हदीस आ जाए तो वो वाजिब तावील है, वो वाजिब तावील है। अगर वाजिब तावील अगर नहीं है तो वो मरदूद है, वो मरदूद है। जब हदीस मुतवातिर कबूल नहीं है, वाजिब तावील है, मेरा दावा ये है कि शेखैन की अफजलियत मुतलका है। हजरत अबू बकर रूहानियत और विलायत में जो अफजल हैं ये जुज़वी है, फजीलत जुज़वी का जुज़वी फजीलत से आप अफजलियत नहीं कह सकते। आपने कहा था क्या अली अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर आपने कहा था, विलायत में रूहानियत में हजरत अली अफजल है, आपने ये तख्सीस किया था। आप मुतलक को तख्सीस नहीं कर सकते, ये इख्तियार आपको किसी ने नहीं दिया, ना आपको दिया है, ना आला हजरत को दिया है, ना किसी को नहीं। आपको किताब मिल गई, ये किसी को नहीं दिया, आपको किताब मिल दी। फतावे अजीजिया 412, हाँ फतावे अजीजिया 412, पहले देखिए 412। आप फतवा अजीजिया के आप अभी आप भेजे हैं 317 पेज के, 317 पेज का आपको पिक्चर भेजना चाहिए था। कहाँ पे 317 पेज का आपने पीडीएफ मुझे भेजा है, 417 में कहाँ से दूं? आप तो मुझे 317 का पेज किताब भेजे हैं। अरे भाई वो हवाले के लिए गलती क्यों? आप जंग में आए हैं, इल्मी मैदान में आप आए हैं, आपसे गलती क्यों होगी? आप 417 कह रहे हैं, आप 317 आप भेजे हैं। वो चली गई होगी दूसरी। सुनिए दूसरी, अगर आलमगीर अशरफ क्यों दूसरी होगी? इस बात नहीं, आपने अभी तक नहीं, आपने अभी तक नहीं भेजा, आपने अभी तक 417 वाली नहीं भेजा। आपकी ये बात मानी नहीं है, नहीं आप गलत भेजे, आपने गलत नहीं। आपकी बात आप इमाम आज़म के कौल से नहीं किया है। इस बात को इमाम आज़म से बड़े नहीं हैं, हुजूर मखदूम पाक से बड़े नहीं हैं, ये शाह अब्दुल अजीज की बात को कैद किया है जो उन्होंने अफजलियत की बात कही है। शाह अब्दुल अजीज की उसी बात को कहा है। मैंने आपको हदीस से पाक से कहा, मौला अली ने फरमाया क्या कि जो अबू बकर पर मुझ पर मैं बताता हूँ करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अगर मुझे हजरत यूनुस पर अफजल कहे, कोई मुझे हजरत यूनुस से अफजल न कहे, हुजूर ने कहा। हाँ, तो आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हजरत अली ने जो फरमाया वो गलत था, वो नहीं अफजलियत मुतलका की बात कर रहे हैं। कौन सी हदीस से कहा है? कौन सी हदीस से कहा है? किसने? कौन सी हदीस में कहा है हजरत? किसने? हजरत इस्लाम ने किसने कहा फरमाया? किस हदीस से पाक में फरमाया? बुखारी की हदीस, बुखारी की हदीस, हदीस नंबर बताए। बुखारी और दूसरी हदीस बता रहा हूँ, दूसरी हदीस बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर, पहले हदीस नंबर यार, पहले हदीस नंबर बताएं हजरत। नहीं, हाँ हदीस नंबर बताइए, हदीस नंबर बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको जाफर तैयार से अफजल ना दो। मुझे हजरत ये देखिए आपको मालूम है कि मेरे पास किताब नहीं थी। आप हदीस नंबर बताएं, आप हदीस नंबर बताएं जनाब। किताब नहीं, मेरे पास तो किताब है, मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको मैं इबारत दिखा रहा हूँ आपको। आप तो बादा के बाद आप रसूलुल्लाह ये जगह रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। आप हदीस नंबर बताइए, हदीस नंबर बताइए, हदीस नंबर बताएं। हाँ, हदीस नंबर बताए बुखारी शरीफ। सुनिए, हदीस नंबर बताएं पहले बुखारी शरीफ की, जो आपने कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में। कहिए हदीस नंबर कितना? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर कितना? मैं दे रहा हूँ, झूठ ना हो लेकिन याद रखिएगा।
ठीक है, आप हदीस नंबर बताइए बुखारी उसको जो है आप उसको जो है बाद में भी कह सकते हैं कि मैंने बाद में नहीं, अभी बाद हाँ। में क्यों? नहीं हजरत, आप अभी एक दलील लीजिए, अभी आपने दलील पेश किया है सही बुखारी शरीफ की हदीस, हाँ हदीस नंबर सुनिए बुखारी की हदीस शरीफ बताइए। ये सही बुखारी और ये नंबर जो है इंटरनेट पे 3415 है, 3415 पे है 15 3415। हाँ आपकी बात में तो हजरत तरतीब ही नहीं नजर आ रही है जनाब, भाई बताइए 3400 ये इंटरनेशनल है। ठीक है, हदीस नंबर कितना बताया आपने? 3415 देखिए 3415। हाँ, हदीस में क्या है बताइए, पढ़िए हदीस, पढ़िए हदीस पढ़िए। वला 3415 इन्ना अहदन अब्दुल मिन यूनुस इब्न मता, और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि कोई शख्स। आप दोबारा पढ़े हजरत, दोबारा पढ़े आप दोबारा पढ़े। ये है क्या है हदीस नंबर 3415। हाँ ठीक, और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि कोई शख्स यूनुस बिन मता से बेहतर है। एक बात हजरत, आपको हदीस बयान कर रहे हैं, आपको हदीस का उसूल हदीस की याद होना चाहिए। बताइए क्या ये मुतवातिर है? क्या ये मुतवातिर है? बुखारी की यहाँ तो उमूमी तौर पे लिखा हुआ बुखारी की सब हदीस से मुतवातिर नहीं है, सही है लेकिन मुतवातिर नहीं है। मुतवातिर के खिलाफ अगर कोई सही हदीस आ जाए तो वाजिब तावील है। आप ये हदीस पाक, ये हदीस पाक नहीं है, ये हदीस पाक है। आपने भी कहा हदीस, आपने रसूलुल्लाह पे तहमत बांधी अभी, आपने रसूलुल्लाह के बारे में आपने जी वो मुतवातिर है जी। इमाम मुतवातिर हदीस है जी जनाब मुतवातिर है। मैं हलफ लेकर कह रहा हूँ, मैंने मौला अली की जो रिवायत पेश की है, मैं हलफ लेकर कह रहा हूँ वो हदीस मुतवातिर है। 80 रावियों ने रिवायत क्या है, ये तारीफुल खुलाफा में, इमाम जलालुद्दीन सूती ने कहा है। नहीं, आपने कहा कि जो मौला अली की हदीस आपने बयान की है वो हदीस मुतवातिर है, ये बात गलत है। वो हदीस मुतवातिर नहीं, आपने हलफ उठाकर ये बात कही है। आपने कहा मैं हलफ उठाता हूँ कि वो हदीस मुतवातिर है। हदीस मुतवातिर किसने कहा है? किसने कहा है? क्या कहा? किसने कहा है हदीस मुतवातिर? आपने जो हदीस कहा वो हदीस मुतवातिर है? अरे आप अभी कह रहे हैं कि जो मैंने हदीस बयान की वो हदीस मुतवातिर है, मैं उसे हलफ उठाता हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बस दुनिया देख ले कि मैं उस पर हद लगाऊंगा। ये वाली हदीस को हजरत साहब मुतवातिर कह रहे हैं, जरा इनको ही नहीं पता कि हदीस मुतवातिर है कि नहीं। हदीस फरमाया हजरत अली ने जो हदीस रिवायत फरमाया, ये तारीखुल खुलाफा में इमाम सयूती ने फरमाया। तारीखुल खुलाफा इमाम जलालुद्दीन सयूती ने फरमाया, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने फरमाया। जी क्यों? जी हाँ जनाब, ये मुतवातिर हदीस पाक है, ये मुतवातिर हदीस पाक है। इसमें मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है। हजरत कहाँ लिखा है? ये तो मैं आपको दिखा रहा, इमाम जलालुद्दीन की किताब, इमाम जलालुद्दीन की तारीखुल खुलाफा किताब। क्या इमाम जलालुद्दीन की हदीस में क्या कोई शक है? उनके मुहद्दिस अजल्ला होने में क्या कोई शक है? हदीस है, हदीस के बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये हदीस मुतवातिर है, ये साबित कीजिए। जी मैं तो कह कर रहा हूँ आपको, इमाम जलालुद्दीन सयूती जो मुहद्दिसीन के इमाम है, वो हाफिजुल हदीस है, ये खुद फरमा रहे हैं। ऐसे तारीखुल खुलफा की अगर बहुत सी हदीस आपको पेश करूंगा, सुनाइए हजरत। आप तारीखुल खुलफा की बहुत सी हदीस, आपका जो दावा है कि हजरत मौला अली ने कहा, ये मुतवातिर है, मैं कह रहा हूँ ये मुतवातिर है, मुतवातिर है। मैं कह रहा हूँ आप सुनिए। हजरत सैयदुना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि ला अजिदु अहदन फद्दलनी अबी अला अबी बकरिन इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। जो अबू बकर पर मुझको फजीलत दे, अफजलियत दे, वो मुफ्तरी है, वो झूठा है, उसे 80 कोड़ा लगाया जाएगा। ये सैयदुना इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी हाफिजुल हदीस देख लीजिए। ये हदीस मुतवातिर है, ये साबित कीजिए।
जी जी, ये यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। क्या मुतवातिर लिखा यहाँ है? पे लिखा हुआ है साहब। जी हाँ हजरत, कहाँ लिखा? जी हाँ। पढ़िए, अखरज अल बुखारी बिन मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब, इस बारे में इमाम ज़हाबी फरमा रहे, इमाम ज़हाबी फरमा रहे हैं कि ये मुतवातिर कहाँ हदीस है। लिखा? पढ़िए, मुतवातिर लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, मुतवातिर, हाँ मुतवातिर इस्तेमाल कीजिए। जी ये लफ्ज़ मुतवातिर, जी जी, मैं आपको पेश कर रहा हूँ, आपको मैं पेश कर रहा हूँ हजरत, मैं पेश कर रहा हूँ। अजमाउ सहाबती, अजमाउ सहाबती, ओके। ठीक है, अजमाउ सहाबती व इत्बा अजमाउ सहाबती व इत्बाइहिम अला अफदलियत अबी बकर सुम्मा उमर व सुम्मा उस्मान व अली। अब इस हदीस सही के पढ़ रहे हैं तहत, आप। इस हदीस के तहत नहीं हजरत, इस हदीस के तहत पढ़ रहा हूँ, नहीं इस हदीस के तहत मैं पढ़ रहा हूँ, इस हदीस के तहत फरमा रहा हूँ। सुनिए, इसमें फतहुल बारी में वो फरमा रहे हैं फइन्नहुम अजमअू अला अन्ना अलीयन अफदलुल खल्क़ि बअद सलासा, इस बारे में सहाबा के इजमा है, यही मुतवातिर की दलील है जनाब। ये हदीस मुतवातिर है या नहीं? इमाम, ये हदीस मुतवातिर है, साबित करो, हदीस मुतवातिर है, साबित करो। मैं तो साबित कर रहा हूँ। इमाम जलालुद्दीन का हाफिजुल हदीस नहीं है, इमाम जलालुद्दीन का कौल आपके पास काबिल कबूल नहीं, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए इमाम जलालुद्दीन काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन देखिए, इमाम हाफिज जलालुद्दीन अगर कोई हदीस बयान करे तो वो मुतवातिर हो जाएगी। इमाम ज़हबी कोई हदीस ले आए तो वो मुतवातिर हो जाएगी। मौलाना इस हदीस का मुतवातिर होना साबित करो, हजरत साबित करो पहले। आप अपना दावा, मेरे पास नाज़रीन देख रहे हैं कौन क्या दावा कर रहा है। ये हदीस आप अली का पहला नंबर ये दावा करें, आप ये दावा करें, आप ये पेश करें, साबित करो। ये हदीस मुतवातिर है हजरत, मुतवातिर है, मैं तो आपको कह ही रहा हूँ। दलील? हाँ दलील, दलील तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फतहुल बारी से, फतहुल बारी से मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिजाल होते हैं यहाँ से दलील इमाम ज़हबी होंगे, दलील इमाम मुनकदीर होंगे, दलील यहया इब्न मईन होंगे, दलील। अच्छा ये तवातिर नहीं, आप कह रहे तवातिर नहीं है, आप कह रहे तवातिर नहीं है, आप साबित कीजिए। मैंने दावा है, मैंने दावा है, आप मुझे साबित कर दे ये हदीस मुतवातिर नहीं है। आप मुझे साबित कर दे। नहीं, मैंने दावा किया, मैंने दलील नहीं दिया, आप हमने साबित कर दिया, आप इनकार कर रहे हैं, आप दलील पेश कीजिए। नहीं, दावा आप दलील हम दें, मौलाना आप ऐसा ना करें, दलील हम दें, अपने ऊपर जुल्म ना करें। मैंने अफजलियत अली की बात की थी, दावा आपका दलील हमें देनी थी, किताब मोतबर नहीं है, आप ये फरमाइए। अगर हदीस मुतवातिर ना होगी, हदीस से मुतवातिर ना होगी, मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। आपको मैं करोड़ों, मैं आपको अगर जितना चाहिएगा मैं आपको दूंगा, 1 लाख रुपया मैं आपको तोहफे में भेजूंगा, आप ये साबित करें। मैं आपको 1 लाख रुपये तोहफे में दूंगा। आप मौलाना बस ये कह दो कि अगर मैं हदीस मुतवातिर साबित ना कर पाया, मैं झूठा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं ये मुनाजरा हार चुका हूँ, और मैं कल कहूंगा, परसों कहूंगा कि आप इस बात पे गलत हैं। हजरत जनाब इस बारे में सबका इजमा है जनाब। आप मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए कि ये हदीस मुतवातिर है। बात हो गई, नहीं मानते हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती का हाफिज हदीस, आप हदीस कर रहे हैं। आप अपने उलमा से पूछिए, हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियां से पूछिए, हुजूर कायदी मिल्लत महमूद अशरफ साहब से पूछिए, हुजूर शेखुल इस्लाम से पूछिए, ये हदीस मुतवातिर है कि नहीं है, आप मुझे साबित करें। आपने दावा किया है, शेखुल इस्लाम ने नहीं किया है। मैंने दावा किया, मैंने दलील दिया, ये मुदल्लल दलील है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी की किसी और ने नहीं किया है। आप अगर दलील देख रहे हैं तो दिखाइए कहाँ मुतवातिर है, मुतवातिर दिखाइए। इमाम ज़हबी ने कहा लिखा है कि मुतवातिर है, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने कहा लिखा है कि मुतवातिर है, अल्लामा बकलानी ने कहा लिखा कि मुतवातिर है, अल्लामा यहया इब्न मईन ने कहा लिखा कि मुतवातिर है। वो हवाला दीजिए। हदीस के मैदान के पहले तालिब इल्म आप आ गए हैं मदरसे के, सारी वो तहसील से दूर की बात लग रहा है, पहले मदरसे के पहले तालिब इल्म है इमाम जलालुद्दीन। क्या आपके नजदीक क्या मोतबर मुहद्दिस नहीं है? आपका दावा मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको दूंगा। बात मुनाज़रे की 1 घंटे की हुई थी। नहीं जनाब, आप साबित करें, आप साबित करें, पहले साबित करें। तारीखुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन की हदीस मुतवातिर मैं नहीं मानता,
आप एक बार कह दीजिए, आपका दावा है, आपका दावा है, आप पहले सुन्नत दावा करते हैं, अपने आप को ये सुन्नी हदीस कहते हैं, मुतवातिर आप अपने आप है, को सुन्नी कहते हैं और हजरत अली को रूहानियत विलायत में अफजल कहते हैं। इमाम जलालुद्दीन की किताब से इनकार करते हैं, तो आप सुन्नी कैसे हो गए? जो सुन्नी हो गए वो इमाम जलालुद्दीन की किताब को इनकार नहीं करेगा हजरत। नहीं हजरत नहीं, आपने कहा आप इमाम जलालुद्दीन की किताब को जनाब आप साबित कीजिए, ये इसको इनकार कीजिए, आप इनको इजमा साबित कीजिए। हर मदरसे में पढ़ाई जाती है ये तफसीर सावी, हर जो उलमा होते हैं वो बुखारी शरीफ की शरह पढ़ते हैं, फतहुल बारी पढ़ते हैं। यहाँ पे वाज़े तौर पे यहाँ पे कहा गया है, वाज़े तौर पे कहा गया है ये हदीस पाक मुतवातिर है और इसको 80 रावियों ने कहा है। आप एक बार कह दो कि इमाम, आप एक बार कह दीजिए जनाब, 80 रावी का नाम बता दीजिए, इतना मालूम है मुझे कबूल नहीं है, 80 रावी मत बताइए, मैं छोड़ दूंगा, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आपसे मुनाज़ा भी नहीं करूंगा। आप कह दीजिए क्योंकि आप मुतवातिर है, ये साबित कीजिए। दावा करते इमाम जलालुद्दीन की किताब को आप नहीं मानते, इस पे आप एतबार इस पे आप सवाल कर रहे हैं। इमाम जलालुद्दीन ये हदीस मुतवातिर है, साबित कीजिए। नहीं हो सकते जनाब, ये पूरी हदीस दुनिया यहाँ मुतवातिर है। तक के वहाबी देवबंदी भी इमाम जलालुद्दीन सयूती के सामने खामोश हो जाते हैं, उनके दलील के सामने अपने अकल पे घोड़े नहीं दौड़ाते, और आप अपने आप को मैं आपसे दलील मंगा रहा कह रहे हैं, हूँ, मैं दलाइल और दलील और उसकी बात, आप दलील दीजिए। सैयद अशरफ आप ये हदीस मुतवातिर है, उस पर दलील दे। आप दलील से बात करें हजरत। दलील कह रहे हैं ना, मैं ठीक है, मैं आपको दलील दे रहा हूँ। सैयद आलमगीर अशरफ साहब, दलील दे रहा हूँ, नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, मैं दलील दे रहा हूँ, नोट कीजिए, नोट कीजिए। तफसीर कबीर में वो फरमा रहे अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी अजमाउ मुफस्सिरूना मिन्ना अला अन्नल मुराद मिन्हु अबू बकर, इस बारे में मुफस्सिरीन का इजमा है, ठीक है, इस बारे में मुफस्सिरीन का इजमा है। इमाम सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स उन पर यकीन से मोतक़िद होगा वो अहले हक और अहले सुन्नत वल जमात का होगा और गुमराही और बिदात की जमात से अलहदा होगा। तो जो हजरत मौलाना आपने जो हदीस पेश की है, बहुत आराम से कह रहा हूँ, जो आपने हदीस पेश की है मैं उसके दलील पेश करें, आप दलील के मुकाबले में दलील पेश करें। अच्छा, हदीस में मैं आपको कौन सी किताब पेश करूँ तो आप मानेंगे? ये देखिए, शरह बुखारी इरशादुल सारी शरह बुखारी, आप ये किताब देखें, इसमें खुद वो नकल फरमाते हैं। कौन नकल फरमाते हैं? हजरत सैयदना इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि अल मुतवफ़ा 923 हिजरी, वो फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं, बाबू आप सफा नंबर नोट कीजिए, मैं सफा नंबर कह रहा हूँ, ये देखिए, आप पढ़िए, इरशादुल सारी शरह बुखारी, आप सफा नंबर नोट कीजिए, सफा नंबर नोट कीजिए। पढ़िए, वो फरमा रहे हैं बाबू, वो फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? वहाका शाफिऊ व गैरुहु इजमाउ सहाबा व ताबईन, के बारे में सहाबा धीमे पढ़ें, शाफिऊ व गैरुहु इजमाउ सहाबती व ताबईन अला ज़ालिक, सहाबा और ताबईन का इस बारे में इजमा है, इस बारे में इजमा है। सहाबा इमाम शाफी फरमा रहे हैं, क्या किस बात पे? इमाम शाफी को तो मुनकिर है। अरे भाई, बात हदीस की हो रही है, बात हदीस की हो रही है। कहाँ ये मैं कह रहा हूँ, ये हदीस की बात है। इमाम जलालुद्दीन को ना माने जी, तो हदीस की बात नहीं, तो मैं क्या तफसीर की बात कर रहा हूँ। शरह बुखारी इरशादुल सारी, क्या ये तफसीर की बात, तफसीर की किताब है? क्या ये फिक़ह की किताब है? पहले आप एक दलील को दीजिए, ये हदीस मुतवातिर है, ये हदीस मुतवातिर है। क्या सुनाया आपको? ये हदीस मुतवातिर क्या पढ़कर सुनाया आपको? क्या लिखा? जी नहीं, आप हटधर्मी ना करें जनाब, हटधर्मी ना करें। उसमें लिखा है हदीस मुतवातिर है, ना माने, इमाम जलालुद्दीन के कौल को भी ना माने। आपसे मैं बकाया कौल और अक़वाल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि हजरत मौला अली ने जो बात कही है, आप पढ़िए, आप हदीस पढ़िए, आप जो ये अभी आप बताइए ना कि मुतवातिर है कि नहीं। हदीस पाक पढ़कर आइए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताइए, अपने उलमा से सीख कर आइए, मुतवातिर अभी आपने पढ़ दिया, मुतवातिर नहीं है। आप बताइए, अभी दावा आपने किया है, अभी आप अभी कॉल लगाइए इमाम जलालुद्दीन की किताब। नहीं, मैं दावा किया, मैं तो कह रहा हूँ आपको,
इमाम जलालुद्दीन की किताब में आपको वाज़े तौर पे दिखा रहा हूँ, इबारत दिखा रहा हूँ, आप नहीं मान रहे। इरशाद सारी शरह बुखारी कह रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं। मुतवातिर आपकी हटदर्मी जनाब, आपकी हटदर्मी इसे मौलाना साहब साबित कीजिए। तवातुर किसे कहते हैं पहले वो समझिए। हदीसे मुतवातिर, देखिए कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं, कितने मौलाना किताब पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपने जो ये दावा किया है कि हजरत अली ने जो ये फरमाया कि मैं 80 हद जारी करूंगा, ये हदीस मुतवातिर है, साबित कर दीजिए, बस बात खत्म। मैंने आपको इतनी देर में क्या मेरे घर की किस्सा कहानी आपको मैंने सुनाया है? ये मुतवातिर नहीं है। एक भी हदीस आप मुझे दिखा दीजिए, एक भी मुहद्दिस से कौल दिखाइए मुतवातिर नहीं है। आपने दावा किया है, आपने दावा किया है, दावा किया, आपको दलील पेश किया, आप नहीं माने, आप कॉल लगाइए, उलमा को कॉल लगाइए, कहाँ दलील? अपने खान बताए अशरफिया के उलमा को लगाइए, उलमा को लगाइए आप। किस मुहद्दिस ने इसे मुतवातिर कहा? अस्माउर रजाल में किसने इसे मुतवातिर कहा है? इमाम ज़हबी की बताइए। आपको हदीस का इल्म नहीं है जनाब, आपको हदीस का इल्म नहीं है। आप इमाम जलालुद्दीन का आप इनकार कर रहे हैं, इमाम शाफी का कौल को इनकार कर रहे हैं, इरशाद सारी इब्न हजर अस्कलानी के कौल को आप इनकार कर रहे हैं। आप इसे नहीं मान रहे तो कौन सी दलील आप मानते हैं जनाब? क्या आपका गायतुत तंजील की दलील आप मानेंगे? माज़अल्लाह, आप अहले सुन्नत का दावा करते हैं और आप इमाम जलालुद्दीन की किताब को रद्द कर रहे हैं, उसकी इबारत को नहीं मान रहे हैं, तो आप कैसे सुन्नी हैं? क्या मेयार है? हज़रत इमाम जलालुद्दीन सिद्दीकी की किताब को रद्द करें। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हजरत मौला अली की जो ये बात है, आप तवातुरन जो हदीस कह रहे हैं तवातुर है, तो साबित फरमा दीजिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपको क्या इमाम जलालुद्दीन की इबारत पे क्या आपको एतमाद या यकीन नहीं है? इमाम जलालुद्दीन की किताब जो मैंने आपको पढ़ के कहा है, ऐसे ही यकीन और एतमाद की बात मुतवातिर कहा है, आप ये साबित करें जनाब। मुझे ये जनाब कहा, नहीं, आप इमाम जलालुद्दीन की किताब को नहीं मान रहे हैं, आप इमाम शाफी के कौल को इरशाद सारी इब्न हजर अस्कलानी की किताब को आप नहीं मान रहे हैं। आप मुझे साबित करें, मैं तो दलील दिया पढ़ के सुनाया, आप मुझे पढ़कर सुनाए, आप मुझे नेट में सर्च करें, आप अपने उस्ताद को भी बोलिए बगल बैठ जाए, वो बोलिए को सामने आए बैठे बात करें। मैं हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कौल से नहीं हटते हैं। वो बात कर रहे कि नहीं? आप साबित करें, आगे बाएं नहीं, आप आए बाएं नहीं, आप साबित करें ये मुतवातिर नहीं है, आप साबित करें ये मुतवातिर नहीं है, आप साबित करें। किया है, बहुत सिंपल सी बात है मौलाना, दावा आपने किया है, दलील आपकी। हजरत नहीं, आपके पास दलील नहीं है। मैंने कुरान से कहा, अली का पहला नंबर किसने कहा है? किसने कहा है? अभी जो बात, अभी इस बात के बाद आगे बात हुई, अभी इस बात के बाद मैं चाहे कल एक घंटा ले, आप इस बात पर पहले आप साबित करें। आप कल की बात क्यों कह रहे हैं जनाब? क्या आज आप पस खा गए जो कल की बात कर रहे हैं? आप दलील दीजिए, मुतवातिर है या नहीं, दलील दीजिए, आप आज दलील दीजिए, दलील दीजिए, आप कह दीजिए, आप दलील दीजिए। आप अभी मैंने दलील दिया, आप नहीं माने। ये हदीस मुतवातिर है, दलील दीजिए। दोनों ये हदीस मुतवातिर है, दलील दीजिए। इसके आगे घंटे के थे। हजरत मेरी बात सुने, बात सुने। आपने मुतवातिर हदीस का हजरत बात सुने, मेरी बात सुने हजरत, बात सुने, मेरी बात सुने। 1 घंटे की वक्त था, वो खत्म हो गया, ठीक है। फिर से आपको 5 मिनट और उनको 5 मिनट दिया जाता है। आप आपकी दलील पेश करें, वो उनकी दलील पेश करेंगे, बस यही ये डिबेट खत्म होता है। सबसे पहले मुतवातिर की दलील पेश करें। मैंने आपको मैं 5 मिनट बैठा हूँ, नहीं मैं बैठा हूँ, आपने इनकार किया। मैं बैठा हूँ, सरह बुखारी इरशाद से मैंने कहा, आपने नहीं माना, आप हजर भी कर रहे हैं। मैंने आपको अल-फिक़्हुल अकबर से पेश किया, मैंने आपको इहयाउल उलूम से मैंने आपको दलील पेश किया, ये आपको इरशाद सारी से मैंने कहा, आपको मैंने बुखारी शरीफ से कहा जनाब, लेकिन आप तो मानने पे है ही नहीं। साबित कीजिए, थोड़ी मानते हैं, ये मुतवातिर है। आप साबित करें, इनकार है, आप इनकार है, मुतवातिर नहीं है, आप साबित करें, दावा आप साबित करें। और आप कल
कल आप क्यों बैठेंगे, कल आप क्यों बैठेंगे? आज आप बताएं ना, आपका है, आप कल क्योंकि क्यों, 1 आप अभी घंटे की बात हुई बताइए। थी, ये 1 घंटे से निकल गया। मैं ऑनलाइन हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ, ओके, अभी चलिए। मैं ऑनलाइन हूँ। दावा आप कॉल बात लगाइए, सुने। आप कॉल लगाइए, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, आप कॉल लगा के दावा पूछिए। आप आपका इनकार है, दलील इनकार आप दें। मुतवातिर आप कीजिए। हजरत मेरी बात सुने, आप नहीं लोग बोल दोनों सकते। ऐसे बोलते रहने से फजर हो जाएगा, आप खत्म नहीं नहीं बोले। होगा। आप कोई शरीफ दलील नहीं दे सक रहे हैं, तो यही मुनाजरा आप खत्म नहीं होता बोले, है। आप नहीं बोल सकते। आप बोलिए हदीस मुतवातिर है, आप नहीं बोल सकते। ये बोलने के लिए कहीं टाइम नहीं दिया गया था। आप हजरत एक बोलेंगे, एक घंटा मुकर्रर था, आपको डिबेट के लिए इनको बोलने का एक टाइम घंटे नहीं है, मुकर्रर था, आपको ओवर हो बोलने चुका का है। हक नहीं था। आप बिल्कुल मत बोले। मुतवातिर हदीस नहीं है, यदि आप इनकार इमाम जलालुद्दीन की किताब को आप इनकार कर बताइए, रहे हैं मैं बैठा और हूँ। मुतवातिर नहीं, यदि पेश नहीं कर सक रहे हैं आप। मैं खुद बैठा हूँ, आप कॉल लगाइए, किताब लाइए। आप आवाम देख रही है, आवाम देख रही है कि कौन दलील पेश कर, कौन नहीं कर रहा है। आप मुतवातिर नहीं है, मुझे एक रिवायत पेश करें आप। ये आपने हदीस दावा मुतवातिर किया। नहीं है, आप ये हदीस मुतवातिर नहीं है, ये आपने दावा हदीस किया। मुतवातिर नहीं है। दावा किया। जनाब बताइए, बताइए जनाब बताइए। आप ये हदीस मुतवातिर नहीं है, ये हदीस मुतवातिर नहीं है। दावा आप आपका मुझे है, बताइए। दलील दीजिए। मैंने आपको दलील दिया, आप हकदर्मी कर रहे हैं। इमाम जलालुद्दीन की किताब को आपने नहीं माना, इरशाद सारी को नहीं। क्या मैं आपको यहाँ से किताब भेज दूं? आप तो वो भी नहीं दिखा रहे। मैंने तो आपको हर एक हवाला से मैंने आपको पेश किया, मैंने आपको पेश किया। वसाया इमाम आजम में, वसाया इमाम आजम में, वसाया इमाम आजम में भी ये हदीस के पास को इमाम आजम ने फरमाया कि आप इमाम आजम को भी ना माने, इमाम जलालुद्दीन को ना माने, इब्ने हजर कफ्तारानी को भी ना माने, इब्ने हजर कफ्तारानी को भी ना माने, तो आइए आपके हकदर्मी है, ये मुतवातिर नहीं है। उसकी आप सनद मुझे बताइए, उसकी सनद आप बताइए, मुझे उसकी सनद बताइए। नहीं, आप मुझे आप सनद सनद नहीं में समझेंगे, आप मुतवातिर सनद है नहीं या नहीं? समझेंगे, आप इबारत नहीं पढ़ सकते। सनद बात में रसूलुल्लाह मुतवातिर, का आपकी रसूल आवाज को गई, पढ़ते हैं, आपको मुदाफ आपकी मुदाफिल आवाज के चली कायदा गई पता है। नहीं है, और आप आपकी हदीस आवाज आप हदीस मेरी आप तरफ हदीस नहीं के आ पास रही है। नहीं समझेंगे, आप सनद अब नहीं मैं इधर समझेंगे भी जनाब, अपनी आवाज आप तो देखिए, मुदाफ मुदाफिल बहुत नहीं चालाक समझते हैं, हैं। अपनी आवाज इधर आप नहीं, चालाकी नहीं, चालाकी आप माइक कर रहे निकाल हैं, दिया मौलाना चालाकी ने, आप आवाज कर आ रहे रही हैं। है लेकिन मेरा हजरत, ये आवाज रास्ता आ रही रहेगा है। ताकि दुनिया को पता चल जाए। आप देखिए चालाकी कर रहे नाज़रीन हैं, किराम, आप चालाक कर रहे हैं, आप इस चालाकी कर रहे मौलाना हैं, ने किस आप तरीके चालाकी से, कर रहे हैं जनाब। नहीं नहीं जनाब, आप जब इमाम जलालुद्दीन की किताब हमने को ये इनकार कर बात रहे हैं, सुन्नी अपनी भी कह रहे वीडियो हैं, में कही, इमाम शाफी के मैं इजमा को तमाम आप उलमाए अहले इनकार कर सुन्नत रहे की हैं, बारगाह इब्ने में हजर अर्ज़ करता कफ्तालानी की बात को आप इनकार कर रहे मेरी हैं, बात को तो आप बहुत गौर मुतवातिर से कह रहे हैं, तो ठीक है, आप ही दलील क्या दे दीजिए, अफजलियत आप ही दलील दे दीजिए मुतलका जनाब। का कौल करने के बाद आप किससे अगर बात कोई कर रहे हैं जनाब? अपने चैनल में आप भाषण तफसील के देना शुरू साथ कर दिया। आप किसी इधर बात दूसरे कीजिए, इधर बात सहाबी को कीजिए, आप बयान करे, आप इधर बात कीजिए। फज़िले जुज़ी के आप तौर मुझे पर, फज़िलत अस्तगफिरुल्लाह जुज़ी के तौर अस्तगफिरुल्लाह, ये पर उम्मीद आपसे नहीं थी जनाब। अफजल का हजरत इस्तेमाल करे आपको कि मैं क्या आपके वो चैनल पे बाबे इंटरनेशनल फजाइल सुन्नी में चैनल पर जो बैठे है या हैं, नहीं। उन्होंने इमाम क्या जलालुद्दीन की किताब मतलुल इमाम जलालुद्दीन की आला किताब को हज़रत इनकार फाज़िल किया, बरेलवी ने जलालुद्दीन की किताब इस को इनकार बात किया। को वो मेरे कहा चैनल है, से हट के अपने चैनल पे बात कर रहे हैं। आप डर गए हजरत, डर गए, आप डर गए, आप ये आप फरार हो गए, मेरे चैनल से आप फरार हो रहे हैं, अपने चैनल पे बात कर रहे हैं, मेरे तरफ मुखालिफत कर रहे हैं। आपने आप फरार हो गए जनाब, आप फरार हो गए, फरार हो गए, तक़यीद के साथ आप फरार हो गए। और दूसरे देखिए को अवामी अलल इतलाक़ अवामी मान लिया सुन्नत, जाए। आप देखिए इनका पहले की दावा फजीलत हजरत पहली अली का होगी पहला और नंबर था, दूसरे की हजरत अली का फजीलत पहला दूसरी नंबर, होगी। हजरत वो अली बेचारा रूहानियत बैठ विलायत करके में अफजल, वहाँ पर वो अपने मेरे जबान बंगालियों से में बात सुन के मेरे बात की तरफ से मुक्त करके बंगला अपने के चैनल साथ पे लाइव दे लोगों रहे को हैं, गुमराह तो कर अपने रहा चैनल पे वो ठीक है। लाइव देते रहे, तो बात करते रहे। बहरहाल आप हदीस यहाँ मुतवातिर का इनकार है, उन्होंने अपनी आप अगर आवाज फरार हो रहे हैं अपने चैनल पे जाके, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। नहीं, आप दलील नहीं दे सकते, आप हार गए जनाब, दोनों आप हार हजरत गए। मेरी बात सुने हजरत, डिबेट यहीं खत्म होती है, डिबेट यहीं खत्म होता है। बात आप अपने ही चैनल में अब वाहवाही करते रहे, दूसरों के चैनल पे आपको बात करना भी नहीं आता है, दलील देना तो दूर की बात है, आप दलील देना भी आपको नहीं आता है। आप अपने चैनल में चले गए, मेरे तरफ से बात कीजिए, मेरे तरफ से आप मेरे जानिब से बात कीजिए, आप मेरी तरफ कीजिए, अपने चैनल में क्यों बात कर रहे हैं आप मुझे दलील दीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, जितनी देर कहिएगा मैं बैठा रहूंगा।
सुबह तक शाम तक हर वक्त बैठा रहूंगा। आप अपने चैनल में सुन्नी इंटरनेशनल चैनल वाले नाज़रीन देखिए, इकराम, उन्होंने इमाम इब्न हजर यहाँ हम लोग खत्म करते हैं। सैयद अस्क़लानी की किताब आलमगीर असलम साहब कोई दलील नहीं दे सके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से ये मुनाजरा खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने ये कहा फतहुल बारी को सुन्नी चैनल वाले देखिए, सुन्नी इंटरनेशनल चैनल वाले देखिए। मैंने उनको दलील दिया, मैंने उनको दलील दिया, फतवा रसीदिया दिया, उन्होंने किताब भी नहीं दिखाया और इमाम जलालुद्दीन ने किताब को इनकार किया। ये सुन्नी नहीं हो सकते हैं। अली का पहला नंबर ये शिया राफिदी का अकीदा है। नाज़रीन इकराम, आप लोग ये फैसला कर लें किसकी दलील ज्यादा मजबूत है। हजरत अली का पहला नंबर है। आलमगीर अशरफ कोई दलील नहीं दे सके, शरई दलील कोई पेश नहीं कर सके हैं और डिबेट के रूल्स भी वो तोड़ रहे हैं। वो यहाँ बात नहीं करके अपने चैनल में बात कर रहे हैं, तो आप भी इसकी कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि